Okay, welcome all to the platform of UPSC Guide. Fanny. So, in the last lecture, guys, I discussed with you basic orientation of the UPSC. So, how you should be approaching UPSC. So, how you should be preparing and basic strategy points that I gave you. So, as you prepare, note down most of these points and start studying accordingly. Now, slowly, we will go into more strategic issues or technical issues, how you should be preparing. So today, I am going to discuss with you the syllabus in detail and what you should be, how you should be preparing, what are the topics of the syllabus. That part I will be discussing with you. So basically, yesterday, in the lecture day before yesterday, I discussed or just told you the prelim ka syllabus, paper 1, paper 2. And then in the mains, the 9 papers that are there, I gave you overview of that. And then I also explained to you this trinity of the civil service exam, that why these 3 papers are very, very important: ethics paper, essay paper, optional paper. And only in these 3 papers, you can score up to 130, 140 easily. And I told you, prelim doesn't matter with how many marks you clear the prelims. अगर prelim का कट ऑफ 90 है and you get the 90 marks and someone gets 120, 130 mark, doesn't make a difference, because means में no prelims marks are going to get counted. So what gets counted is your means के marks. So means mark are more important, and here these 3 papers help you more. And ये जो तीनों paper I told you are very static. Once you know how to write good essay, it's a very limited and you can score very well. Then in ethics paper, again, ethics paper में it's a very static, थोड़ा बहुत dynamic part होता है, that I will take care of. You don't have to worry much about ethics paper at all. Ethics के लिए तो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना. Whatever notes I will give you, all the contents. तो ये दोनों paper I am going to teach you. And so ये दो paper के लिए तो आपको कुछ नहीं करना. My classes and my notes and the booklets or that I will give you, या मेरा ethics का ही खुद का जो book है, that I will give you. Other than that, आपको कुछ नहीं करना. All you have to do is your own writing practice. And उसके बाद optional paper that you have to choose very wisely. Okay, तो पूरा अलग debate है how to choose optional paper. But these 4 paper matter most. And I gave you some mark list also. When I will discuss separate lecture, when I will take ethics का essay का to discuss the syllabus in micro detail. Okay, maybe tomorrow I will discuss ethics paper syllabus. There I will show many such a mark list. To begin with, I just showed you 3-4 mark list, and then I told you in the last lecture that this mains exam is very static. To a great extent, dynamic part is very limited, and so cracking mains is comparatively very easy. That's why you need to get a command over the mains very strongly. कि आपकी किसी भी साल prelim crack होती है, that year you should 100% be able to crack the mains exam at any cost. So never ever fail in mains exam, and you should be ready for mains before your prelims exam. So, and then we discussed कि why UPSC changed syllabus. 2013 में when UPSC changed syllabus, what was the reason for UPSC changing this syllabus? उनको क्या expect है aspirant से? और I told you the recommendations that finally led to the change of syllabus. So UPSC के जो एक चेयरमैन थे DP अग्रवाल, सेकेंड ARC, etc. और सबके रिकमेंडेशन में what they are looking for in UPSC graduates, UPSC aspirant is extremely dynamic personality. और डायनेमिक पर्सनैलिटी इसलिए कि जो जितने यंग बच्चे हैं उनको हायर करना अभी यूपीएससी का ट्रेंड है, क्योंकि यंग जब आते हो ना तो आपको मोल्ड किया जा सकता है. ओके, वेदर यू हैव मैच्योरिटी और नॉट, दैट डजंट मैटर टू यूपीएससी. आज ही मेरा एक कॉलेज में सेशन था पूना के, एक गेस्ट लेक्चर, एंड दैट्स व्हाट आई वाज डिस्कसिंग विद एचओडी ऑफ दैट कॉलेज कि शी वाज सेइंग कि अगर यंग बच्चे लेते हैं तो उनमें तो उतना मैच्योरिटी नहीं होगा. यूपीएससी डजंट बॉदर बिकॉज 2 साल दे विल बी गिविंग यू वेरी गुड ट्रेनिंग, लवासना या लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी या अपना एनईडीटी नागपुर का वगैरह उनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में, और देयर दे विल मोल्ड यू द वे दे वांट यू टू बी. तो इसलिए उनको जितने यंग आए ना दे प्रीफर देम.
दैट्स व्हाई जितने जल्दी आप प्रिपेयर कर रहे हो कॉलेज ईयर से वगैरह, और फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में यू रीच अ मेन स्टेज, इंटरव्यू स्टेज, ओके, दे विल गिव यू वेरी वेरी गुड मार्क्स. बट यही अगर आप बहुत सारे अटेम्प्ट देने के बाद यू रीच इंटरव्यू स्टेज, दैट बैकफायर्स लिटिल बिट इन इंटरव्यू स्टेजेस. एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जो अभी आई टोल्ड यू, ये जो कल्ट चल रहा है सेल्फ स्टडी का, ओके, पहले 4-5 साल तो सेल्फ स्टडी में इतने साल बर्बाद कर देते हैं, एंड बाय द टाइम दे कम इन द गेम इट्स ऑलरेडी टू लेट, एंड देन दे स्ट्रगल लॉट इन मेंस या इंटरव्यू वो स्टेजेस में. सो इट्स बेटर यू प्रिपेयर अर्ली एंड प्रिपेयर वेल विथ प्रॉपर गाइडेंस. एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि डायनामिक पर्सनालिटी क्यों, व्हाई दे आर लुकिंग फॉर. सो मेजर पॉइंट वाज कि जिस तरह से प्रॉब्लम्स चेंज हो रहे हैं गवर्नेंस के सामने, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, उसका एक सिंपल एग्जांपल आई गिव यू कि भाई ब्रिज तो बना दिया एडमिनिस्ट्रेशन में, बट किसी के ध्यान में ये नहीं आया कि नदी अपना रास्ता बदल सकती है, एंड रिवर चेंज दिस कोर्स, एंड सारा पैसा लोगों का बर्बाद, टैक्स पेयर्स मनी बर्बाद. और यही हो रहा है कि जिस रेट से एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो रहा है, गवर्नेंस चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज चेंज हो रहे हैं, इट इज वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक. इसलिए जितने फ्लेक्सिबल ब्यूरोक्रेट है, दैट्स व्हाट दे वांट. और इसलिए अभी जो ट्रेंड है, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज वेरी गुड कंसेप्चुअल नॉलेज. कंटेंट आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए, गुड क्वालिटी कंटेंट, और यू डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, इन द यूपीएससी गाइड आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ इट. ओके, एज आई एम एकेडमिक डायरेक्टर, आपका सारा कंटेंट के बारे में आई विल बी हैंडलिंग. तो जो भी फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगी और उसके बाद जो भी कंटेंट डिलीवर होगा, एवरीथिंग विल बी बेस्ट क्वालिटी. सो अदर देन यूपीएससी गाइड के नोट्स, एक आध दूसरा रेफरेंस बुक दैट आई विल रिकमेंड, सिर्फ उतना पढ़ना है आपको. अदरवाइज यू कैन टोटली फोकस्ड ऑन दिस क्लासरूम नोट्स, क्लासरूम लेक्चर्स, नथिंग एल्स. देन रीजनिंग स्किल, एनालिटिकल स्किल, ये आपको डेवलप करना है. और जब मैं आपको इथिक्स पढ़ाऊंगा, आई विल डिस्कस विथ यू सो मेनी एग्जांपल्स. ना कोई भी थ्योरी जब मैं पढ़ाता हूं तो उसके इतने सारे एग्जांपल्स आई गिव कि उसमें आपको ये मेंटेलिटी आ जाए, एप्लीकेशन ओरिएंटेड, रीजनिंग ओरिएंटेशन. सीसैट पेपर में वही चाहिए, इथिक्स पेपर में वही चाहिए. मोस्ट ऑफ द जीएस मेंस क्वेश्चन कम विथ रीजनिंग मेंटालिटी. तो आपको वो पार्ट एक्सक्लूसिवली फोकस करना है रीजनिंग का. एंड देन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. You should not be only reading information, you should be able to apply that knowledge. That is very important demand of UPSC. So जो question आ रहे हैं कि how Buddha's thoughts are relevant today to the society, how Gandhi's thoughts are relevant today to the society. Okay, तो ये application part is very important. And आपकी जो personality है, flexible, dynamic, उनको ये flexible personality के लोग बहुत चाहिए, dynamic, who can adapt to the situation. Disaster management हो, mob management हो, या पुणे ग्रैंड टूर सडनली आया, इस तरह के कोई भी इवेंट्स हो, ओके, यू शुड बी वेरी गुड एट मैनेजिंग देम, एंड यू शुड बी मोल्डेबल, ओपन टू चेंज पर्सनैलिटी. दैट्स व्हाई दे आर हायरिंग यंग ब्यूरोक्रेट्स. एंड इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज, मल्टी डायमेंशनल नॉलेज. मल्टी डायमेंशनल नॉलेज क्या होता है, दैट आई विल डिस्कस विथ यू इन आवर रेगुलर लेक्चर्स. बट यू शुड बी हैविंग वेरी गुड नॉलेज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, ऑल द डिसिप्लिन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, इकोलॉजी, एनवायरमेंट. और सारा सिलेबस यूपीएससी का ऐसे डिजाइन है that you have to study all this multiple discipline थोड़ा 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 बेसिक लेवल पे. You don't have to go in depth. In depth knowledge they expect only of 2 papers, आपके ऑप्शनल पेपर का. And then ethics and morality, ये जो एक्स्ट्रा पेपर ऐड हुआ नए सिलेबस में, they expect you to understand totally different dimension. उस पे अलग से कल लेक्चर होगा where we discuss ethics का सिलेबस, माइक्रो एनालिसिस, and then study with focus on current issue. और ये सब में मेजर फोकस है करंट इश्यूज पे. इसलिए those students who are preparing for last 5, 6, 7 years, there is no guarantee they will crack the exam. और आप फ्रेशर भी हो, 1-2 साल के पे पढ़ के, many students crack that because most of the question are current affair based. They have ensured there is a level playing field to a great extent. कि बहुत सालों से प्रिपेयर कर रहा है, that doesn't give them extra advantage as such. So basically, what UPSC demand from you? So जो old syllabus था, रट्टा मारो, 8-10 साल बैठ के पढ़ाई करो. Okay, that pattern has been gone. Now they want extremely smart working candidates, not a donkey work. And then I told you, yes, in last lecture, this 33% rule of the UPSC, कि भाई UPSC का guidance, coaching that will provide you, notes that will provide you, content that will teach you, is only 33% of your preparation. उसके बाद आपका खुद सेल्फ स्टडी, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, that matters more. ओके, जो भी कर रहे हो, कितने सिंसियरली कर रहे हो, वीकली टेस्ट वगैरह, ये सारा पार्ट दैट यू नीड टू फोकस ऑन. टेस्ट सीरीज इफ यू कंडक्ट, वो आपको अटेंड करने पड़ेंगे. गेस्ट लेक्चर वी ऑर्गेनाइज, वो आपको अटेंड करने पड़ेंगे. सो दैट कंसिस्टेंसी मैटर मोर. एंड उसके बाद आई टोल्ड यू आपका स्ट्रेटेजी.
स्ट्रैटेजी ऑल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई टोल्ड यू सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रैटेजी, और आगे भी जाके लेक्चर्स में हम इतने स्ट्रैटेजीज आपको देंगे. सो मोस्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी के जो पॉइंट उस लेक्चर में मैंने बताए, इस लेक्चर में भी बताऊंगा. एंड यू हैव टू कीप नोटिंग देम, रिमेंबरिंग देम. तो जो भी पढ़ रहे हो ना स्ट्रैटेजी के साथ, वरना बहुत सारे स्टूडेंट कोचिंग भी करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स दे आर हार्ड वर्किंग, डू द सेल्फ स्टडी, बट भाई स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपेयर कर रहा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड सो दीज 3 पॉइंट्स दैट आई डिस्कस्ड विथ यू, वो सारे मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिए. एंड देन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी में एक कोर पॉइंट दैट आई वांटेड टू टेल यू दैट डे, बट वी हैवंट हैड इनफ टाइम, सो आई कुडंट डिस्कस दैट विथ यू. तो prepare for UPSC exam, not for the prelims exam. Okay, that is very important. Now, just give me a second. So this point, now see, literally 10 साल से पढ़ा रहा हूं एंड आई नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन यूपीएससी के स्टूडेंट्स के साथ. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जो मैंने बोला सेल्फ स्टडी का जो ट्रेंड है आजकल, ये सारे स्टूडेंट है ना 5-4 साल सेल्फ स्टडी करते हैं ओनली टू क्रैक द प्रीलिम्स एग्जाम. ओके, प्रीलिम्स के बाद दे नेवर गो आगे के स्टेजेस में. आपका मेंस का एग्जाम, ये इंटरव्यू का पार्ट, इसका भी प्रिपेयर करना है. सो आई टोल्ड यू बिफोर यू अपियर फॉर द प्रीलिम्स यू शुड बी रेडी फॉर द मेंस एग्जाम, और उसके बाद एंड इंटरव्यू का भी. भाई डोंट कंसीडर दिस एग्जाम सेपरेटली, प्रिपेयर फॉर ऑल द स्टेजेस, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू ऑल टुगेदर. अब जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, द नेक्स्ट फाइनल स्टेज दैट यू शुड बी एक्चुअली प्रिपेयरिंग. अब इंटरव्यू का व्हाट आई वांट टू से, इंटरव्यू के स्टेज के लिए, सी मेंस में जो आपको आंसर राइटिंग करना है, एसे राइटिंग, इथिक्स राइटिंग वगैरह, देन आपको इंटरव्यू स्टेज में यू हैव टू यू नो पर्सनैलिटी असेसमेंट. अब यूपीएससी डोंट कॉल इट इंटरव्यू, आपका जो एग्जाम का एड है दे कॉल इट अ पर्सनैलिटी टेस्ट. अब ये जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, दे ओनली चेकिंग असेसिंग योर पर्सनैलिटी, ये आप कितने डायनेमिक हो, फ्लेक्सिबल हो, हाउ मच यू टोलरेट द स्ट्रेस, प्रेशर, आपने कितने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, ये सारी चीजें की है. एंड गाइज इसमें तो ये जो पार्ट है ना, ये एक दिन में डेवलप नहीं होता, एक महीने में डेवलप नहीं होता. यू नीड, इट टेक्स टाइम फॉर यू टू डेवलप दैट पर्सनैलिटी क्वालिटीज, कि ब्यूरोक्रेट की जो क्वालिटीज है. एंड दैट्स व्हाई ये जो पार्ट है इंटरव्यू का, पर्सनैलिटी टेस्ट, आप अभी से प्रिपेयर कर रहे हो. यू हैव टू प्रिपेयर और फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्सनैलिटी एस्पेक्ट. एट द सेम टाइम मेंस में एसे राइटिंग, ओके, या आपका आंसर राइटिंग, दिस इज वेरी स्किल बेस्ड वर्क. It takes time to develop a good answer writing skill, develop good this essay writing skill, etc. And that's why ये जो mains का part है, that you need to focus exclusively. तो सर फैन बंद. So mains के इसमें इसको भी time लगता है. So when you are preparing, already start focusing on mains simultaneously. Start focusing on interview. अब interview का what I meant कि how you can focus on interview before even going for interview. इसके बहुत सिंपल रूल्स होते हैं गाइज. एज यू ज्वाइन द क्लास एंड हम क्लासेस देखेंगे, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि क्लास में भी बहुत सारे बच्चे दैट आई सी हियर कि नाइट पैंट पहन के आएंगे क्लासरूम में. अब मुझे बताओ कि आप नाइट पैंट पहन के या लाइब्रेरी में नाइट पैंट पहन के बैठते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए, कि 10-12 घंटे बैठ के पढ़ाई करते, तो नाइट पैंट में ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है ना. मुझे बताओ कल अगर आपकी पोस्ट निकल गई एंड यू आर सिटिंग विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, कोई मीटिंग है, तो वहां के नाइट पैंट पहन के जाओगे, या आपके स्टेट के सीएम के साथ या पीएम के साथ कि 12 घंटे आज बहुत लंबी मीटिंग चलने वाली है, आई विल सिट इन द नाइट पैंट. भाई वो चीजें, ऐसी चीजें मत करो. टेक योर जॉब सीरियसली. आप लाइब्रेरी में बैठ के भी पढ़ रहे हो, बी इन फॉर्मल्स, ओके, वॉक लाइक अ ब्यूरोक्रेट, थिंक लाइक अ ब्यूरोक्रेट, बिहेव लाइक अ ब्यूरोक्रेट. ओके, सिंपल. आप कोई ईमेल भी लिख रहे हो, एक प्रॉपरली एक अच्छे से ईमेल ड्राफ्ट करो. अब ठीक है, आज ही एक इंसिडेंट हुआ कि मुझे एक बंदे को पेमेंट करना था, तो मैंने उसको पूछा कि सेंड मी योर बैंक डिटेल्स एंड पैन कार्ड डिटेल्स. तो मैंने पैन कार्ड का फोटो भेजा, फिर उसके बाद बैंक का अकाउंट नंबर पूछा, फिर मैंने बोला भाई कौन सी बैंक है, फिर उसने बैंक का नेम भेजा, फिर मैंने पूछा कि भाई आईएफएससी कोड क्या है, फिर उसने आईएफएससी कोड भेजा, फिर मैंने पूछा कि भाई ये कौन सा ब्रांच, बैंक का ब्रांच कौन सा है. सो पॉइंट इज गाइज,
दिस इज नॉट व्हाट ब्यूरोक्रेट्स बिहेव. मैंने आपको बैंक डिटेल पूछे तो एक बैंक ट्रांजैक्शन के लिए कौन सी डिटेल चाहिए, यू शुड बी गिविंग देम इन वन मैसेज. ओके, ये छोटे छोटे प्रोटोकॉल्स होते हैं that you need to follow because bureaucracy में they take these protocols very seriously and you can't take it lightly. तो ये पहले से how you behave, the way bureaucrats talk. Okay, ये थोड़ा देखो, ये वो कैसे इंटरव्यू में आंसर्स देते हैं. कुछ इंटरव्यू के वीडियोस आते हैं वेबसाइट पे वगैरह, हमारे भी बहुत सारे रील्स है इंटरव्यू के. सो वेबसाइट पे हाउ दे टॉक, हाउ दे एक्सप्रेस देमसेल्फ, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनके इंटरव्यू हम डालते हैं वेबसाइट वगैरह पे. सो दैट यू नीड टू लर्न एंड प्राइम योरसेल्फ पहले से ही कि आपकी पर्सनैलिटी. तो आप दोस्तों के साथ हो, यू कैन से थैंक्स, बट आप किसी सीनियर अथॉरिटी से बात कर रहे हो, यू कैन यूज थैंक्स काइंड ऑफ वर्ड्स, यू हैव टू यूज वर्ड्स लाइक थैंक यू, जो फॉर्मल रेफरेंसेस होते हैं. तो यही छोटी छोटी चीजें आपके हर बिहेवियर में, प्रोटोकॉल में. आपको इवन अगर इंस्टीट्यूट को कोई लेटर देना है कि भाई मैं 1 महीने लेक्चर नहीं कर सकता, मेरा शेड्यूल पोस्टपोन करो, कुछ भी इस टाइप का, यू शुड बी ड्राफ्टिंग अ प्रॉपर लेटर. जिस तरह से ब्यूरोक्रेट्स कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, लेटर्स लिखते हैं एक दूसरे को. सो दिस इज व्हाट पर्सनैलिटी का पार्ट दैट यू नीड टू कंटिन्यूअसली फोकस ऑन. कोई टॉपर्स के लेक्चर होते हैं, गो एंड अटेंड देम, सी हाउ दे बिहेव, हाउ दे स्पीक एटसेट्रा. लेकिन ये चीजें सालों भर जब करोगे, एक पूरे साल 2 साल, तब जाके यू विल बी इन पोजीशन टू फेस द इंटरव्यू पैनल. फिर आगे जो टेक्निकल पार्ट है इंटरव्यू पैनल को फोकस ये डील करने का, दैट विल डिस्कस विथ यू जब हम आपके साथ ये मॉक इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट करते हैं. बट लार्ज पार्ट आपको भी करना है. दैट्स व्हाई रिमेंबर, डोंट प्रिपेयर फॉर द प्रीलिम्स, प्रिपेयर साइमल्टेनियसली. ये पूरी एग्जाम देनी है भाई. आपने 5 और 6 के 6 प्रीलिम्स क्रैक कर दिए, नो वन इज गोइंग टू पे एनी अटेंशन टू इट. आपके पास फाइनल पोस्ट है या नहीं है, दैट्स मैटर. एंड दैट्स व्हाई फिर प्रीलिम, मेंस, इंटरव्यू, सारे स्टेजेस को साइमल्टेनियसली यू नीड टू प्रिपेयर, फोकस ऑन. एंड देन और एक इश्यू होता है यूपीएससी में, बिकॉज यू आर बिगिनिंग योर जर्नी. तो सब बच्चों का यही एक बेसिक क्वेश्चन उनके मन में होता है कि भाई हाउ मेनी अटेम्प्ट्स आई शुड गिव फॉर द यूपीएससी एग्जाम. मोस्ट ऑफ यू आर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हो, लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो, या कॉलेज खत्म हुआ है, पूरा फ्रेश प्रिपेयर कर रहे हो. सबके पास यही इश्यू होता है कि भाई हाउ मेनी अटेम्प्ट्स आई शुड बी प्रिपेयरिंग, कितने साल यहां देना सही है नहीं है, और शुड आई इवन स्पेंड सो मेनी ईयर्स और नॉट. तो गाइज मेरा क्लियर कट सजेशन है, बिफोर यू बिगिन एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए आपके पास. सो हाउ मेनी अटेम्प्ट्स टू अपीयर फॉर यूपीएससी इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तो ये सिर्फ यूपीएससी का नहीं है. सो रिमेंबर गाइज, व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी यूपीएससी एग्जाम, ओके, अटेम्प्ट्स दैट यू गिव, एक ही बॉटम लाइन है दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कि आपको प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है. ओके, आर यू हैविंग अ प्रोग्रेस. सो प्रोग्रेस मतलब क्या कि अगर आपका अभी पढ़ाई हो गई और आपने पहला प्रीलियम दिया, प्रीलियम नहीं निकला, फाइन. सेकेंड बार प्रीलियम दी, नहीं निकला, चलो थोड़ा बहुत और इंप्रूवमेंट की जरूरत थी. लेकिन तीसरी भी प्रीलियम दी और तीसरी बार प्रीलियम नहीं निकल रही, तो भाई यू नीड टू थिंक ऑफ सम अदर ऑप्शन. या 4-4, 5-5 साल प्रीलियम ही नहीं निकली और बच्चे पढ़ते रहते, नो, समथिंग इज रॉन्ग. आपको चीजें इंप्रूव करनी चाहिए थी, दैट यू डिड नॉट इंप्रूव अपॉन. ओके, प्रोग्रेस दिखना चाहिए. हाँ, लेकिन मेरा एक स्टूडेंट है, उसने 6 अटेम्प्ट दिए, 6 अटेम्प्ट भी उसका यूपीएससी आईएएस वगैरह क्लियर नहीं हुआ. बट पॉइंट है ना, वो 3rd अटेम्प्ट से लेके 6th अटेम्प्ट तक हर बार इंटरव्यू स्टेज को पहुंच रहा था. तो अगर हर बार इंटरव्यू जा रहा है, वो प्रीलियम क्रैक कर रहा है, मेंस क्रैक कर रहा है, इंटरव्यू तक पहुंच रहा है, देन ही इज स्टडीइंग वेरी सिंसियरली, ही इज गेटिंग रिजल्ट. वो लास्ट कुछ बाकी था दैट ही कुडंट डील विथ. लेकिन फॉर्चुनेटली उसका लास्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी नहीं हुआ, बट यूपीएससी का आईएएस वगैरह में सिलेक्शन नहीं हुआ. लेकिन यूपीएससी की जो दूसरी एग्जाम है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, उसमें उसको डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर आईफॉस, वो जो पोस्ट मिल गई इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की. सो बेसिकली तो वहां पे उसका अच्छा मार्क्स थे एंड ही कुड गेट दैट पोस्ट. सो बेसिकली गाइस, वो प्रोग्रेस दिखना चाहिए आपके. अगर हर बार आपकी प्रीलियम निकल रही है लेकिन मेंस 4 बार मेंस में जाके फेल हो गए आप, then that is also something very problematic. Guys, आपकी प्रीलियम निकलनी चाहिए, मेंस निकल के आगे. एक बार प्रीलियम नहीं निकली, नेक्स्ट टाइम प्रीलियम दो, नेक्स्ट टाइम प्रीलियम नहीं निकली, थर्ड टाइम दो, थर्ड टाइम प्रीलियम निकलनी चाहिए. मेंस पहली बार गए हो, नहीं मेंस हुई, फाइन, 4 टाइम प्रीलियम्स दो, मेंस, लेकिन उस टाइम तो मेंस आपकी निकलनी चाहिए. अगर उस टाइम भी मेंस नहीं निकल रही, then you are either not focusing on improving yourself, or you are then preparing but you are not able to tackle the last कुछ गड़बड़ जो है. okay, कुछ भी हो, फिर you are guilty or something else is the reason, but you need to think about then other option.
आई एम नॉट सेइंग यू गिव अप ऑन प्रिपरेशन, बट बहुत सारी दूसरी एग्जाम होती है, स्टार्ट गिविंग दोज एग्जाम, टेक द बैकअप जॉब एंड फिर प्रिपेयर करो यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विस, एमपीएससी, जो भी आपके एग्जाम है। और उसके बहुत सारे एग्जाम है, इंडिया आईबीपीएस का एग्जाम होता है आपका, स्टेट सिविल सर्विस में कंबाइंड के एग्जाम होते हैं, ग्रुप बी, ग्रुप सी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसे जो बहुत सारे सेक्टोरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके एड्स आती है, आईबी की एग्जाम होती है, ये रॉ वगैरह की एग्जाम आती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एग्जाम होती है, बल्क में एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, इंश्योरेंस इंडस्ट्री की एग्जाम्स होती है। कोई एक एग्जाम पकड़ के यू नीड टू प्रिपेयर साइमल्टेनियसली, ओके, एंड दैट्स व्हाट कि हाउ मेनी अटेम्प्ट्स टू अपीयर फॉर यूपीएससी, सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू थिंक। तो उसमें एक ही मैंने रिकमेंडेशन दिया, बट देयर आर मल्टीपल इश्यूज दैट यू नीड टू ऑल्सो कंसिडर। तो पहले तो डू यू हैव प्रोग्रेस, अगर प्रोग्रेस है यू शुड बी गिविंग द एग्जाम, एंड पहले प्लान करो कि भाई मुझे कितने साल देने वगैरह, 5 ईयर प्लान बना के मत आओ। जैसे मेरे वाइफ का, शी गेव द शी वर्क फॉर 2 years इन आईटी आफ्टर हर ग्रेजुएशन, और उसका क्लियर था शी विल गिव 3 attempts ओनली, आफ्टर दैट शी विल नॉट बी गिविंग एनी मोर अटेम्प्ट। उसने लास्ट ईयर में जब वो ग्रेजुएशन कर रही थी उसी टाइम यूपीएससी का फॉर्म भर दिया, कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी, जीरो, सिर्फ देखने के लिए यूपीएससी एग्जाम होती क्या है, फील लेने के लिए, सी जस्ट वेस्टेड 1 attempt, ओके। उसके बाद फिर 2 साल जॉब किया, अपना जो एजुकेशन लोन वगैरह सब नील कर दिया, एंड देन शी केम फॉर द क्लास। पहला अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ प्रीलियम, सेकेंड अटेम्प्ट प्रीलियम हुआ, मेंस नहीं, थर्ड अटेम्प्ट में प्रीलियम मेंस इंटरव्यू का कॉल आया। उसी साल हमने प्लान किया था कि अगर इंटरव्यू के कॉल से फाइनल सिलेक्शन नहीं होता, शी विल ज्वाइन द आईटी बैक सॉफ्टवेयर, और वो करते करते शी विल गिव द नेक्स्ट अटेम्प्ट। अब जब आप 3 साल अच्छे से पढ़ चुके हो कोचिंग करके, तो प्रीलियम वगैरह पे कमांड आ चुका होता है, मेंस में कमांड आ चुका होता है, ऑप्शनल अच्छे से पढ़ चुका होता है, आपको पूरे 12 घंटे घर पे बैठ के पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ओके। थोड़ा वो छुट्टी लेके वगैरह एग्जाम से पहले यू कुड रिवाइज, लेकिन फॉर्चुनेटली उसी साल शी क्रैक द पोस्ट। सो इसीलिए गाइस, सो डू यू हैव प्रोग्रेस, दैट मैटर्स, एंड सेकेंडली फैमिली बैकग्राउंड सपोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज आप अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो लेकिन आपकी फैमिली में कोई बिजनेस है, एवरीथिंग समथिंग वेल, या फाइनेंशियली काफी अच्छी फैमिली है, लाइक मेरा कजिन भी दे रहा है, अब उसने ग्रेजुएशन ही जर्मनी से किया था फॉरेंसिक साइंस में, और फादर का रियल एस्टेट का बिजनेस है, ही इज गोइंग टू ज्वाइन दैट बिजनेस ओनली, तो फिर 6 अटेम्प्ट भी दे दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बैकअप ऑप्शन। सो ऐसा कुछ सॉलिड ऑप्शन हो आपके पास, यू कैन देन टेक अ रिस्क। तो ये जॉब कभी भी उतना वर्ती है, आई विल से। क्यों? क्योंकि जब आपकी यूपीएससी में व्हेन यू गेट सिलेक्टेड गाइज, ये जो मोबिलिटी मिलते हैं ना यूपीएससी के पोस्ट में या इवन एमपीएससी में भी, वो मोबिलिटी इंडिया में कोई भी जॉब आपको नहीं दे सकता। लाइक फॉर एग्जांपल, अभी मेरे वाइफ ने, मैं अंकल से रियल एस्टेट के बारे में इशू डिस्कस कर रहा था, वो भी यही प्लान कर रहे थे कि कितने अटेम्प्ट देना नहीं देना। सो आई वाज टेलिंग देम कि इसने अगर रियल एस्टेट बिजनेस ज्वाइन भी किया, 30 साल उसने रियल एस्टेट में जॉब भी किया, क्या वो इतना बड़ा रियल एस्टेट का ग्रुप बना पाएगा? मैंने 2-4 कंपनीज के नाम बता दिए, ये रियल एस्टेट ग्रुप के इतने बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी वो बना पाएगा क्या? ओके, बना भी सकता है, बट वेरी इंपॉसिबल कि 2-3 हजार करोड़ का टर्नओवर हो ऐसी कंपनी। बट मेरी वाइफ ने 5 साल में अभी सर्विस ज्वाइन करके हो गए, ट्रेनिंग वगैरह पकड़ के, उसने एक रेड किया था इनकम टैक्स का, और वो रेड के बाद वो ऑलमोस्ट 37-38 लोगों पे रेड किया था। और जब अभी ये दिवाली वगैरह का फेस्टिवल होता है, बहुत सारे जिन पे रेड हुआ था ना, ये सारे लोग दिवाली की विशेष देने के लिए ऑफिस में, सारे कंपनीज के एमडी सीईओज आके ऑफिस के बाहर उसके बैठे थे। ओके, नो जॉब इन इंडिया विल गिव यू मोबिलिटी। इतने यंग एज में यू विल बी सिटिंग डायरेक्टली विद द चीफ मिनिस्टर्स, ओके, प्राइम मिनिस्टर, सारे कंपनी के एमडी सीईओज विल बी अंडर यू। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो 5-6 साल में भी जब आपको ये पोस्ट मिलती है ना, मोबिलिटी इज वेरी हाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गैम्बलिंग रिस्क ले लो, कैलकुलेटिव रिस्क होनी चाहिए, आपका प्रोग्रेस हो रहा है क्या नहीं, कोई फैमिली बैकग्राउंड सपोर्ट है क्या नहीं है, एंड सेम वे आपके पास जॉब इन हैंड है क्या कोई, या आपका करियर उतना स्ट्रांग है क्या। जैसे वाइफ ने 2 साल जॉब किया, उसका प्लान था कि भाई 2 साल के वर्क एक्सपीरियंस पे कहीं पे भी आईटी में जॉब फिर से मिल जाएगा, मैं 3-4 साल रिस्क लेके आ जाती हूँ। सो दैट काइंड ऑफ गुड रेज्यूमी, गुड बैकअप, इंजीनियरिंग वगैरह का ग्रेजुएशन या कुछ इस तरह से आपके पास ऑप्शन है क्या, या कोई आप स्टेट सिविल सर्विस का कोई दूसरा जॉब करते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्टेट सिविल सर्विस में ऑलरेडी किसी पोस्ट पे, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर, तहसीलदार वगैरह, बीडीओ वगैरह, और ये भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं। दैट देन आप 6 अटेम्प्ट लो, सारे जो भी आपके अटेम्प्ट है कैटेगरी वाइज सारे एग्जॉस्ट करो, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट,
एंड आर यू इन्वेस्टेड इन करियर डेवलपमेंट? अब ये जब आप पैरेलली प्रिपेयर कर रहे हो, ओके, कुछ पैरेलल करियर डेवलपमेंट मतलब क्या, आपका ऑप्शनल पेपर होता है। तो आपको क्या करना है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है ना, तो किसी ओपन यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन का एडमिशन लो आपके ऑप्शनल पेपर का, और पैरेलली उसकी डिग्री ले लो इग्नू वगैरह में जाके, ओके, ये में हिस्ट्री, ये में ज्योग्राफी वगैरह। तो डोंट सिट टोटली आइडल, आपको कुछ अलग नहीं पढ़ना होता है, कॉलेज भी अटेंड नहीं करने होते, सिर्फ सबमिशन थोड़े करने होते हैं, उससे आपका आंसर राइटिंग इंप्रूव होता है, और डायरेक्टली एग्जाम देके और आंसर राइटिंग इंप्रूव होता है। ओके, सो ये पैरेलली ये भी प्रोसेस यू शुड बी डूइंग साइमल्टेनियसली। सो ये भी चीज याद रखना, बिफोर यू बिगिन मुझे आपको कुछ मिसगाइड नहीं करना। ओके, ये भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ टीचर। ओके, अब इतना मैं फ्रीली ऑनेस्टली नहीं बोल सकता अगर मैं किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकता। नाउ दिस इज माय ओन इंस्टीट्यूट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। और मुझे भी पता है बहुत कैसे कैसे फैमिली से बच्चे आते हैं प्रिपेयर करने के लिए, बहुत हार्डवर्किंग सिंसियर होते हैं, एंड ऑब्वियसली इट इज एक्सट्रीमली हाई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी ऑल्सो। उनको मिसगाइड ना करो, या वट एवर दे आर प्रिपेयरिंग वेल, ओके, या ना भी हो रहा तो उनको बता दो कि भाई यू शुड बी हैविंग बैकअप एंड सो ऑन। ओके, एंड दैट्स व्हाई कि ये भी पहले याद रखो कि हाउ मेनी अटेम्प्ट्स टू गिव, कैसे प्रिपेयर करना, पहले ये चीजें बिफोर यू एंटर यू शुड बी नोइंग दिस ऑल बैकग्राउंड फॉर द यूपीएससी। फिर उसके बाद कंसीडरिंग अगर आप 27 का अटेम्प्ट दे रहे हो, ओके, तो आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए पूरे एक साल की। सो ये लेक्चर मैं अलग से लूंगा क्योंकि उसमें बहुत चीजें डिस्कस करनी होती है, दैट आई विल नॉट डिस्कस नाउ, वो अलग से आई विल बी डिस्कसिंग। लेकिन उसके लिए अभी एक ही चीज याद रखो कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, ओके, अबाउट यूपीएससी एंड प्रिपरेशन में, कि एक साल का आपका टोटल प्लान क्या होना चाहिए। तो उसमें एक ही पॉइंट याद रखो अभी, ओपन एंडेड प्लान, कि दिसंबर तक, मार्च से लेकर आपका जो कोचिंग चालू हो रहा है दिसंबर तक, अज्यूमिंग मैं बोल रहा हूं 27 में आप एग्जाम दे रहे हो, अगर 27 में एग्जाम नहीं दे रहे हो तो इंडिविजुअली मुझे कांटेक्ट करो, आई विल टेल यू आपका कौन से साल का एग्जाम है, उस हिसाब से वी विल प्लान योर प्रिपरेशन। आई टोल्ड यू, जो भी क्लासरूम के स्टूडेंट है उनके लिए मेरा फ्री मेंटरशिप रहता है थ्रू आउट, कोई एडिशनल आपको चार्जेस नहीं, यू विल ऑलवेज गेट मेंटर। जितने भी अटेम्प्ट दो, जितने भी साल आप प्रोसेस में हो, यू कैन बी इन टच विद मी। तो आपके लिए मैं अलग से आपके हिसाब से वी विल डिस्कस द स्टडी प्लान आपका। बट बेसिकली 27 में एग्जाम दे रहे हो तो एक ओपन एंडेड चीज अभी याद रखना कि बाय दिसंबर 2027 आपकी इतनी कमांड आनी चाहिए आपके मेंस पे। तो ये टाइम पीरियड में आपको प्रीलिम्स करनी है, बट डेली यू हैव टू फोकस ऑन मेंस के पेपर, जो प्योरली मेंस है, इथिक्स पेपर प्योरली मेंस में, एसे प्योरली मेंस में, वर्ल्ड हिस्ट्री, आपका पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडियन सोसाइटी, ये सारे टॉपिक आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो मेंस ओरिएंटेड है ना, ये चीजें अच्छे से समझ लो, अच्छे से कर लो, और दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में मेंस का कोई पेज भी नहीं खोलना। 5 महीने सिर्फ प्रीलियम प्रीलियम प्रीलियम। अपना क्लास होने के बाद 2.5 घंटे का जो भी आपका दिन भर का पढ़ाई का टाइम है, 7-8 घंटे सिर्फ प्रीलियम्स करने, सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस, नथिंग मेंस का। लेकिन जिस दिन आपकी मेंस क्रैक होती है, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे आल्सो एंड जस्ट नाउ, कुछ टाइम पहले, कि प्री क्रैक होती है ना, तो दैट टाइम यू शुड बी इन पोजीशन, मेरी मेंस निकलने ही वाली है। मैंने सारा मेंस का पढ़ा है दिसंबर तक, एंड नाउ आई विल बी ओनली फोकसिंग ऑन मेंस। ओके, प्री के बाद आराम से मेन आई विल बी एबल टू क्लियर। इतना बेसिक कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए, दैट शुड बी योर बेसिक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। तो आपको फोकस किस पे करना है, आंसर राइटिंग, इथिक्स का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, एसे का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, और मेंस के जो टॉपिक है प्योरली वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह, उनका एक बार पढ़ के रिवीजन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सो मोस्टली एज आवर बैच स्टार्ट्स ना, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये 3 months पहले वी विल बी फोकसिंग ऑन द मेंस रिलेटेड टॉपिक्स मोस्टली। सो यू विल गेट इनफ टाइम टू डू देयर आंसर राइटिंग, एंड जून से लेके वी विल मिक्स इट, प्रीलिम के कुछ टॉपिक्स, मेंस के कुछ टॉपिक्स, ओके, एंड अकॉर्डिंगली वी विल प्लान। सो पहले 2-3 महीने आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू इथिक्स, इससे ये सारे टॉपिक्स, वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह जैसे कुछ टॉपिक्स। सो यू विल बी इन गुड पोजीशन टू, कि ये अगर पढ़ के होते तो यू विल बी एबल टू वर्क ऑन आंसर राइटिंग एटसेट्रा, वीकली टेस्ट में या एसे राइटिंग एंड सो ऑन। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजीज दैट आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू। नाउ we will dwell into some micro analysis of the syllabus. Now देखना गाइस कि micro analysis of syllabus, why it is important,
कि माइक्रो एनालिसिस में आई एम अज्यूमिंग कि आपको यूपीएससी के बारे में कुछ पता नहीं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिन्होंने ऑलरेडी कोई क्रैश कोर्स किया हो, कुछ बेसिक किया हो। सो वेट फॉर दैट, बिकॉज जो स्टूडेंट्स को कुछ भी पता नहीं यूपीएससी के बारे में या बेसिक सिर्फ पता है, सो उनके हिसाब से आई एम टेकिंग द क्लासेस फर्स्ट, सो दे विल हैव द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूपीएससी। सो बेसिकली फिर माइक्रो एनालिसिस ऑफ यूपीएससी सिलेबस। सो आगे के 1.5 घंटे वी विल डिस्कस द बेसिक सिलेबस के टॉपिक, और उसमें हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी क्लासरूम में, हाउ वी विल बी प्रिपेयरिंग। तो इसमें पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 1, जो आपको आई टोल्ड यू प्रीलिम्स में 200 मार्क्स का पेपर होता है, एंड सीसैट पेपर इज आपका 200 मार्क का, विच इज क्वालिफाइंग। आपको 66% मार्क्स लाने हैं इस पेपर में। सो लेट्स सी द सिलेबस ऑफ द जनरल स्टडीज पेपर 1 प्रीलिम्स का। सो कौन कौन से टॉपिक्स है एंड व्हाट यू नीड टू prepare। सो प्रीलिम्स में आपका जो फर्स्ट टॉपिक है कि करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अब देखना सिलेबस में सबसे पहले टॉपिक उन्होंने यही डाला है कि करंट इवेंट्स। सो आपका जीके पे बहुत ज्यादा इंपेसिस है, और एवरी ईयर गाइस प्रीलियम के पेपर में ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन मिनिमम दे आस्क ऑन अ जीएस पेपर्स। तो यू कांट टेक दिस जीएस में नो रिस्क एट ऑल, यू नीड टू वेरी स्ट्रांगली फोकस ऑन करंट अफेयर। और करंट अफेयर में तो आई टेल यू कि 2 मैगजीन आपको पढ़ने पड़ते हैं। ये तो प्रीलियम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी, एसए के लिए, इंटरव्यू तक। एंड बिकॉज दे हैव शिफ्टेड फोकस ऑन करंट अफेयर, दैट इज एक्चुअली गुड फॉर बिगिनर स्टूडेंट्स लाइक यू, कि आप कितने साल से प्रिपेयर कर रहे हो, वो एडवांटेज उन्होंने थोड़ा कम कर दिया बिकॉज ऑफ द करंट अफेयर। सो करंट अफेयर में आप इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, सो दोनों आपको पढ़ना है। और इसमें वी विल बी गिविंग यू पूरा मंथली एक मैगजीन आपको मिलेगा, एंड एट द सेम टाइम पर्सनली मैं भी डेली जब आप एडमिशन लोगे तो अपने ग्रुप्स बनेंगे, और वो ग्रुप में आपको ऐड करके ओके वी विल कंटिन्यूसली बी सेंडिंग यू कि मैं जब भी पेपर पढ़ता हूं, मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम लगता है, आई कीप सेंडिंग कि इस पे क्वेश्चन यूपीएससी बना सकता है, एंड यू हैव टू डायरेक्टली रीड लिटिल बिट बेसिक्स ऑफ दैट। तो वन थिंग कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो फर्स्टली आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ने जाते हो, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि सारा न्यूज़पेपर अच्छे से समझना, अंडरस्टैंड करना, अगर आपका बेसिक की कोचिंग नहीं हुआ है तो। एंड दैट्स व्हाई, और बाद में भी व्हेन यू प्रिपेयर ना, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना इज वेरी टैक्सिंग। ओके 2-3 घंटे स्पेंड करो, एंड अंडरस्टैंड गाइज, न्यूज़पेपर आपके लिए नहीं लिखा। ये जो न्यूज़पेपर है वो पूरे इंडिया के लिए लिखे, सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए नहीं लिखे। तो बहुत सारे ऐसी न्यूज होती है विच आर टोटली इररिलेवेंट, और 10-10 दिन एक ही न्यूज रिपीट होती है। लाइक ईरान यूएस का जो अभी वॉर चल रहा है, 8-10 दिन दे विल कंटिन्यूअसली ऐड, देयर विल बी न्यूज अबाउट ईरान यूएस वॉर वगैरह। सो बहुत सारे न्यूज आप एंड अप रीडिंग रिपीटेटिवली, उससे कुछ नॉलेज गेन भी नहीं आता। तो इसलिए रादर देन दैट, हम आपके लिए जो मैगजीन बना रहे हैं, हम जो कंटेंट देंगे, यू ओनली फोकस ऑन दैट। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, बट वट एवर मटेरियल वी गिव यू, डू दैट वेरी सिंसियरली। ओके, हमारी कंटेंट की पूरी टीम होती है। आप एक ही न्यूज़पेपर पढ़ोगे, वो 3-4 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उससे दे क्रिएट द मैगजीन, जो आपको पॉसिबल नहीं होगा, एंड यू गेट द रिफाइंड नॉलेज। तो यस्टरडे आई टोल्ड यू सेल्फ स्टडी वगैरह में कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितनी मेहनत डाल रहे हो और उससे कितना यूटिलिटी आ रहा है, ये भी यू नीड टू टेक केयर ऑफ एज यू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। एंड देन उसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब ये जो पार्ट है हिस्ट्री, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स में। मेंस में उसका इंपेसिस थोड़ा कम है, बट प्रीलिम्स में ऑन एन एवरेज 15-20 क्वेश्चन दे आस्क यू ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, दैट पार्ट ऑल्सो। लेकिन गाइज याद रखना, बहुत बार स्टूडेंट्स डू द एनालिसिस कि यूपीएससी का ट्रेंड क्या है, कि फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक, यूपीएससी नॉट आस्किंग क्वेश्चन ऑन जनरल साइंस,
यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चन ऑन साइंस एंड टेक, जनरल साइंस पे क्वेश्चन नहीं आ रहे, और बिकॉज ऑफ दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट देन से कि भाई आई विल नॉट स्टडी जनरल साइंस, बट गाइज इट बैकफायर्स वेरी बैडली। क्यों? कि यूपीएससी का ट्रेंड कुछ भी हो, यूपीएससी ने कहीं पे ये कमिट नहीं किया दैट वी विल नॉट बी आस्किंग क्वेश्चन ऑन जनरल साइंस, और ऐसे ही हुआ। इस साल का जो पेपर था 3-4 क्वेश्चन जनरल साइंस पे आ गए, एंड सो यूपीएससी का ट्रेंड एनालिसिस कर रहा हूं तो उसमें ये समझो कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे, लेकिन इस सेक्टर से क्वेश्चन आते हैं, इस सेक्टर से नहीं आते, तो इस पे क्वेश्चन आएंगे, इस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे। डोंट डू दैट मिस्टेक। यूपीएससी ने कोई ऐसा रूल नहीं बनाया कि हम जनरल साइंस पे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, साइंस एंड टेक पे ही पूछेंगे। एक आध दिन ऐसा पेपर आएगा ना जिसमें ऑल क्वेश्चन विल बी फ्रॉम जनरल साइंस, ओके, एनी फ्लेक्सिबिलिटी विल बी देयर। देन ऐसा आपको लगे कि यूपीएससी 2-3 साल से इंडियन ज्योग्राफी बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है और आपने सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा, अगले साल ऐसा हो कि एक भी क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी पे ना आए एंड ऑल द क्वेश्चन विल बी ऑन वर्ल्ड ज्योग्राफी। सो इस ऐसे ट्रेंड एनालिसिस नहीं करना। आप इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चन आ रहे फाइन, लेकिन ये देखो क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे, नेचर क्या है उसका, ओके। सो ये सारी चीजें से आवर क्लासेस विल गो ऑन, वी विल गो ऑन डिस्कसिंग विथ यू। सो आपका हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, और इसमें फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कम्स ऑन फिजिकल ज्योग्राफी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यू डोंट हैव टू स्टडी इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, सोशल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ये दोनों टॉपिक भी उतने इंपॉर्टेंट है। देन इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू, दिस इज अगेन एक लक्ष्मीकांत की एक बहुत फेमस बुक है, हम रेफरेंस बुक करके आपको वही यूज करने के लिए बताएंगे। हमारा भी मटेरियल होगा बट यू हैव टू यूज दैट लक्ष्मीकांत का बुक, और ज्योग्राफी के लिए भी जीसी लियोंग एक्सेट्रा बहुत सारी किताबें भी वी विल गिव यू द लिस्ट ऑफ दैट यू नीड टू रीड अदर देन आवर स्टडी मटेरियल, व्हिच रेफरेंस बुक्स आर रियली गुड, जो सारी यूपीएससी की लाइफलाइन है, सारे बच्चे यूज करते हैं। वी विल आल्सो सजेस्ट अबाउट दोज बुक्स। अब ये जो है किताबें पॉलिटी वगैरह, उसमें गाइस एक चीज याद रखना कि पॉलिटी का पार्ट यहां पे भी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी का पार्ट यहां पे भी है, और ये पार्ट आपका ऑप्शनल सॉरी जीएस 1 to 3 में भी है, मेंस में। सो ओवरलैपिंग पार्ट है, प्रीलियम में भी है, मेंस में भी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट चूज देयर ऑप्शनल, ओके, मेंस के हिसाब से, वेटेज के हिसाब से, एंड दे थिंक कि भाई पॉल साइंस ऑप्शनल लेते हैं बिकॉज जीएस पेपर 2 पूरा पॉलिटी ओरिएंटेड है, प्रीलियम में भी पॉलिटी का पार्ट है। कुछ बच्चे सोचते हैं हिस्ट्री लेता हूं क्योंकि जीएस 1 में भी हिस्ट्री काम आता है, एटसेट्रा। सो गाइज आई विल शो यू सो मेनी मार्क लिस्ट जिसमें यू विल नेवर फाइंड दिस ट्रेंड कि किसी का ये ऑप्शनल पेपर है पॉल साइंस, दैट्स व्हाई उसने पॉलिटी में बहुत मार्क लाए, या किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल है इसलिए उसने हिस्ट्री जीएस पेपर 1 हिस्ट्री में बहुत मार्क लाए मेंस में। उसका रियल एग्जांपल, मेरे वाइफ का हिस्ट्री ऑप्शनल का स्कोर 320 था, शी वाज ऑल इंडिया टॉपर हिस्ट्री में, फिर भी जीएस 1 में हिस्ट्री जिसका एक पार्ट है मार्क्स सिर्फ 91 थे। सो गाइज ऐसा बिल्कुल ट्रेंड नहीं है, क्योंकि ऑप्शनल की डिमांड पूरी अलग है, जीएस पेपर की डिमांड पूरी अलग है। और अगर आपको ओवरलैपिंग एरिया के हिसाब से कोई ऑप्शनल पेपर चूज करना है ना, बेटर यू चूज द आपका ये फिलोसॉफी ऑप्शनल। देन भाई फिलोसॉफी ऑप्शनल भी कवर हो रहा है 500 मार्क का, इथिक्स का पेपर पूरा फिलोसॉफी का कवर हो रहा है, आपका ऐसे भी आजकल बहुत सारे फिलोसॉफी आते हैं। सो ऐसे ऑप्शनल चूज नहीं किया जाता, उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर में चाहे तो ले लूंगा या यूट्यूब पे डाल दूंगा। सो ऑप्शनल कैसे चूज कर रहे हैं उसका भी पूरा अलग ट्रेंड है दैट यू नीड टू टेक इनटू अकाउंट। लेकिन इसके लिए ये मत सोचना कि प्रीलियम में पॉलिटी है, मेंस में पॉलिटी है तो ऑप्शनल पॉल साइंस लूंगा, ओके, दैट बैकफायर्स वेरी बैडली। ओके, आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, पॉलिटिकल थियरी समझ में आनी चाहिए, वो कनेक्ट होना चाहिए ऑप्शनल से, आपको कोई टीचर होना चाहिए जो ठीक से पढ़ा के आपके आंसर चेक करके दे। सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट यू नीड टू टेक इनटू अकाउंट। और ये सारी चीजें मैंने बोला है 33% कोचिंग रहता है, 33% सेल्फ स्टडी, ये 33% स्ट्रेटेजी पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना सोच के समझ के कैलकुलेटिव डिसीजन लेते हो आप। अब मेरी वाइफ ने जब हिस्ट्री चूज किया, शी वॉज लिटरली हैविंग वेरी मच इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, उसको 4th स्टैंडर्ड में ही शिवाजी महाराज पे स्कूल में कुछ क्विज कंपटीशन था, शी वन दैट। बचपन से ही शी हैज रेड लॉट अबाउट रीजनल हिस्ट्री या इंडिया की हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, और रामायण महाभारत से लेके एवरीथिंग। तो ये इंटरेस्ट भी आपका बहुत जरूरी होता है, और सब्जेक्ट से आप लिंक कर पाओ या नहीं, हिस्ट्री में बहुत फैक्ट्स होते हैं, उतने आप मगअप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, लॉट ऑफ थिंग्स मैटर इन योर प्रिपरेशन। देन अलॉन्ग विद जनरल स्टडीज, देन पेपर 1, ओके, आगे आपका इकोनॉमिक्स भी आता है पेपर जीएस पेपर 1 में। सो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव। अब इकोनॉमिक्स में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब जो थ्योरेटिकल पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, उसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, एंड मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर, आज जो रिसेंटली इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है। पॉलिटी में भी कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल बेसिक्स पे, कॉन्सेप्चुअल चीजों पे, कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर के। लेकिन अभी जो नया ट्रेंड है ना, यूपीएससी क्या कर रहा है, मर्ज कर रहा है क्वेश्चन। अगर एक क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट होना, तो 2 स्टेटमेंट ऐसे दे रहे कंसेप्ट वाले और 2 स्टेटमेंट दे रहे करंट के इश्यू से। सो दोनों मर्ज करके बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। सो वो भी डिवीजन करते मत बैठो कि फैक्चुअल क्वेश्चन कितने, कंसेप्चुअल कितने, इस तरह से। एंड देन जनरल इशू, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। बने बेसिक लेवल पे इकोलॉजी एनवायरमेंट का नॉलेज आपको चाहिए। एंड देन जनरल साइंस, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह। तो इसमें तो उन्होंने ब्लड ग्रुपिंग के क्वेश्चन पूछे, बैक्टीरिया वायरस का कंपैरिजन से लेके आपके ग्रेविटेशनल फोर्सेस एटसेट्रा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एकदम बेसिक बेसिक जो 11th 12th में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ा हो, उसका बेसिक नॉलेज। एंड एट द सेम टाइम यहां पे मेंशन है जनरल साइंस, लेकिन एक टॉपिक मेंशन नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, सैटेलाइट, डिफेंस सिस्टम, मिसाइल्स एंड एवरीथिंग। लेकिन वो आप ये नहीं बोल सकते यूपीएससी को कि साइंस एंड टेक नहीं डाला, क्योंकि पेपर का हेडिंग है जनरल स्टडीज। तो जनरल कोई भी क्वेश्चन हो, दे विल बी गोइंग टू आस्क यू। ओके, तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं प्रीलियम में। अब प्रीलियम में देखना गाइस, आपको 100 क्वेश्चन में मिनिमम, जिस तरह से डिफिकल्टी लेवल और सारी चीजें कंसीडर करते हैं, तो ऐसा होता है नहीं कि 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, इतने डिफिकल्ट होते हैं कि उसको कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। इवन एज अ टीचर, इवन आई ट्राई टू सॉल्व ना, आई वोंट बी एबल टू आंसर देम। ऐसे न्यूज कुछ होती है या क्वेश्चन होता है जो कहीं न्यूज़पेपर में भी नहीं आया, करंट अफेयर में भी कहीं पे नहीं मिला। कोई बहुत इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो हमेशा हर एग्जाम में होती ही है। 10-15 उनके बारे में कभी ज्यादा सोचना नहीं, फोकस नहीं करना। 20 एक क्वेश्चन ऐसे होंगे ना कि हर कोई बंदा जिसने पढ़ा भी नहीं है ना और सीधे यूपीएससी जाके बैठा, वो भी सॉल्व कर पाएगा। ओके, तो 20 एक क्वेश्चन ऐसे हटा दो, बहुत ईजी है। 20 एक क्वेश्चन ऐसे हटा दो, बहुत डिफिकल्ट है। तो बहुत डिफिकल्ट है, यू डोंट नो द आंसर, अदर्स डोंट नो द आंसर, यू आर स्टिल इन द गेम। 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं विच आर वेरी इजी। ओके, अदर्स नो द आंसर, यू ऑल्सो नो द आंसर। ओके, यू आर स्टिल इन द गेम, यू हैवंट वेंट अहेड। लेकिन बाकी जो 60 क्वेश्चन बचे हैं, दे प्ले द गेम। और इसमें आपको जो दूसरे सॉल्व करने वाले वो आपको भी करेक्ट करने, लेकिन जो दूसरों को नहीं और जो दूसरे सॉल्व करे लेकिन आपके गलत हो रहे, यू आर आउट ऑफ द रेस। ओके, तो वो तो नहीं करना, गलती नहीं करनी वो 60 क्वेश्चन में, या पहले भी 20 जो बहुत इजी है वो गलत नहीं करने, वो करेक्ट करने, लेकिन उससे सिलेक्शन नहीं होगा। आगे जो 40, 50, 60 क्वेश्चन बाकी है, इसमें आप कितने ज्यादा सॉल्व करते हो और करेक्ट सॉल्व करते हो, दैट मैटर्स मोर, दैट डिसाइड्स योर सिलेक्शन। अब इसमें इशू क्या है ना, कि जिस तरह से कट ऑफ आ रहा है 90-100 के बीच में कट ऑफ आता है। नाउ आपने सपोज 60 क्वेश्चन सॉल्व किए जीएस पेपर 1 में, 40 क्वेश्चन यू कुडंट एबल टू सॉल्व, आपने सॉल्व नहीं किए। अब ऐसा कभी नहीं होता यूपीएससी में, किसी भी स्टूडेंट को इतना कमांड हो कि 60 में से उसके 50 क्वेश्चन करेक्ट आ गए। ओके, तो 51 क्वेश्चन करेक्ट आ गए और 60 में से 9 उसके गलत हो गए। 9 के लिए उसका पेनल्टी मार्क लग के 3 क्वेश्चन का सब्ट्रैक्ट होगा मार्क, तो 51 - 3 48, और 48 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आपका स्कोर गया अप टू 96। ये इम्पॉसिबल होता है। ओके, 3-4 साल भी जो पढ़ रहा है ना उसको कि 60 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा एंड आई विल गेट ओके दिस 48 करेक्ट या 51 करेक्ट। 60 सॉल्व करोगे ना तो पकड़ के चलो आपके 15-20 के रेंज में गलत होने ही वाले हैं। ओके, सो आप 18 भी गलत पकड़ते हो तो 42 करेक्ट आ गए, 18 गलत हो गए, 18 का 3 से सब्ट्रैक्ट करो तो 6 क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट होंगे। 42 - 6 36 क्वेश्चन, और 36 को आप डबल करो मार्क्स, 72 मार्क्स, कट ऑफ आता है 90-100 के रेंज में। और इसलिए 60 क्वेश्चन सॉल्व करके सिलेक्शन हुआ, ऐसे कैंडिडेट बहुत कम होते हैं। आपको आगे जाके नेक्स्ट 20-25 क्वेश्चन, मतलब 100 में से 80-85 क्वेश्चन यूपीएससी में सॉल्व करने ही होते हैं। सारे बच्चे 85 टच करते हैं, सम 90 भी टच कर देते हैं। ओके, बट 60 एक क्वेश्चन सॉल्व करके आए हो ना, मुझे फोन भी मत करना कि सर 60 क्वेश्चन सॉल्व किए, 65 सॉल्व किए। प्रीलियम निकलना इम्पॉसिबल होता है, इतनी एग्जैक्ट लेवल की एक्यूरेसी। आपको लगता है यार बहुत एक्यूरेट आंसर किए,
यूपीएससी के आंसर की में बहुत ग्लिचेस होते हैं, बहुत आपको जो समझ में नहीं आता है, ऐसा बिटवीन द लाइन रीडिंग होता है, इंटरप्रिटेशन आपका गलत हो जाता है, बहुत ऐसे इश्यूज होते हैं, स्ट्रेस में आप एक दो क्वेश्चन गलत कर देते हो। एंड दैट्स व्हाई गाइस 80-85 क्वेश्चन का अटेम्प्ट दैट यू हैव टू डू इन पेपर 1, जीएस पेपर 1। अब इसमें फिर क्या करना है आपको, जो 80-85 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो आप, उसमें रिमेंबर कि ये क्वेश्चन में उसमें बहुत सारे ट्रिक्स भी है, लेकिन 85-90 क्वेश्चन सॉल्व करना इट इज नॉट पॉसिबल कि सडनली आप पेन उठा के एग्जाम को गए। उस वक्त आपका ये हिम्मत ही नहीं होगी, गट्स ही नहीं होंगे दैट आई विल सॉल्व 85 सर्कल करके आऊंगा। इसलिए आप जो हम वीकली टेस्ट लेते हैं दैट यू हैव टू डू सिंसियरली, और तभी से प्लान करना। वीकली टेस्ट में 50 क्वेश्चन है ना, मैं 40 सॉल्व करूंगा, 100 है ना, मैं 90 सॉल्व करूंगा। गलत होते तो गलत, स्कोर निगेटिव में भी जाता है तो भी। बट जब आप ये हमारी जो टेस्ट सीरीज है इसमें डेली प्रैक्टिस करोगे कि ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करो, ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करो, तब आप में गट्स आएगा टू एक्चुअली मेन एग्जाम में आपके उतने क्वेश्चन सॉल्व करने का। लेकिन यहां एक भी पेपर सॉल्व नहीं किया, या किया तो भी 50 में से 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, या 100 में से 50-60 कर रहे हो, और आपको लगता है मेन एग्जाम में यू विल बी एबल टू आंसर 18,590 क्वेश्चन, दैट नेवर हैपेंस। यही मैं बोल रहा हूं कि पहले से ही आपको वो स्ट्रेटेजी से काम करने, ओके, जो भी हम बता रहे हैं उसको सिंसियरली लेके यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन इट। और ये सब जब आप कर रहे हो उसमें भी कि बहुत सारे कि आपको ऑप्शंस कि बहुत बार क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होता, ऐसे होता है 4 ऑप्शन में 2 ही आंसर पता है, इसमें से आंसर है ए बी में से, सी डी में से आंसर नहीं है, तो भाई कैसे कैलकुलेटिव रिस्क लेना, ओके, ये भी बहुत जरूरी होता है कि यू हैव टू बी प्ले सेफ एंड टेक अ कैलकुलेटिव रिस्क इन योर आंसर। अब ये कैलकुलेटिव रिस्क टेकिंग कैसे होता है, एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग विथ यू इन द क्लास। सो भाई आपको गैम्बलिंग नहीं करना, आपको एक प्रोबेबिलिस्टिक कैलकुलेटिव एनालिसिस करके, कैलकुलेटिव रिस्क टेकिंग करके आंसर देना है। 4 में से आंसर पता नहीं और तुक्का मार के आ गए, दैट इज गैम्बलिंग, इट विल किल यू। हाँ, लेकिन 4 में से 2 आंसर नहीं है लेकिन 2 में से आंसर है, देन दैट इज रिस्क टेकिंग। आपने ऑलरेडी 2 एलिमिनेट कर दिए, 2 में से आंसर पता नहीं, हाउ यू हैव टू देन डू इट, आगे आंसर कैसे करो, तो प्रोबेबिलिटी बल्क में काम करती है। आई विल एक्सप्लेन यू इन द क्लासरूम लेटर ऑन हाउ टू डील अबाउट इट। फिर उसके बाद आपका जो सी सेट का पेपर है, नाउ दिस इज क्वालिफाइंग, लेकिन मैंने जो लास्ट लेक्चर में बताया था, नेवर टेक दिस पेपर सीरियसली, क्योंकि पहले पेपर काफी इजी था सी सेट का, लेकिन बहुत सारे बच्चे स्पेशली नॉर्थ इंडिया में दे वाजंट हैविंग गुड कमांड ओवर द दिस सी सेट पेपर। अब उनका भी गलती नहीं थी, जेडपी का एजुकेशन, बहुत सारे बच्चे जेडपी स्कूलों से सीखे हुए, दैट काइंड ऑफ गुड कमांड दे हैवंट हैड ओवर द सी सेट। सो उन्होंने बहुत अपोज किया सी सेट पेपर हटाने के लिए या इसके लिए रिमूव करो या कुछ चेंजेस करो। बट यूपीएससी को मैंने पहले ही बोला, यूपीएससी इज नॉट टेकिंग एग्जाम फॉर यू कि हम 8-10 साल से प्रिपेयर करें, हमें सीसेट नहीं आता। यूपीएससी हैज क्रिएटेड एग्जाम फॉर देमसेल्व्स, उनको देश चलाने के लिए जैसे ब्यूरोक्रेट चाहिए, दे हैव कंडक्टेड एग्जाम बिकॉज ऑफ दैट, दे आर कंडक्टिंग एग्जाम फॉर दैट। तो वो डिसाइड करेंगे उनको कौन सी क्वालिटी चाहिए, सिलेबस क्या हो। आप नहीं बोल सकते सीसेट मुझे नहीं आता तो सीसेट हटा दो, लेकिन लोगों ने फिर भी प्रोटेस्ट किए। अब यूपीएससी ने 30-40 साल बाद सिलेबस बदला था, यूपीएससी वाजंट गोइंग टू गो बैक, और यूपीएससी ने फिर क्या किया, पॉलिटिकल प्रेशर था तो यूपीएससी बोली ठीक है क्वालिफाइंग कर देंगे। अब इतना डिफिकल्ट किया है ये पेपर क्वालिफाई करना, फिर इफ यू डोंट स्टडी इट प्रॉपरली, लेकिन जिनको ठीक से अच्छे से स्टडी करते हैं, दे डू इट वेल, दे क्वालिफाई इट इजीली। 66 मार्क के लाने 200 में से, विच इज पॉसिबल, बट इफ यू टेक द पेपर लाइटली दैट इज नॉट पॉसिबल। अब सीसेट रिलेटेड भी बहुत सारे टिप्स है, स्ट्रेटेजीज है, दैट आई विल डिस्कस इवेंचुअली, लेकिन उसमें एक चीज याद रखना कि मैं कितना सीसेट की पढ़ाई करूं, नहीं, या आपको लगता है आई हैव गुड कमांड ओवर मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, या 11-12 साइंस वगैरह से किया है, मैथ्स वगैरह सब्जेक्ट पढ़े, तो इसलिए बहुत बार जो पेरेंट्स मुझे मिलने आते हैं कि प्रिपरेशन करते वक्त जिनके बच्चे 11-12 में ही है एंड दे आर स्टिल प्रिपेयरिंग लाइक यूपीएससी आगे उनको प्रिपेयर करना है, तो जब ये पेरेंट्स मेरे पास आते हैं तो वो बोलते हैं कि फिर आर्ट्स वगैरह को एडमिशन ले क्या, तो आर्ट में जाएगा तो ज्यादा लोड नहीं होगा करिकुलम का, एंड दीज स्टूडेंट्स विल बी एबल टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। यस, आर्ट को आप एडमिशन लो 11-12 में, ग्रेजुएशन में भी आर्ट को एडमिशन लो, 5 साल यूपीएससी की पढ़ाई करो,
और आप ऑप्शनल अच्छे से पढ़ पाओगे, ऐसे एथिक्स सब पढ़ पाओगे, जीएस अच्छे से पढ़ पाओगे, लेकिन ये सारा काम आएगा जब सीसेट पेपर क्वालिफाई हुआ। सीसेट क्वालिफाई हुआ तो जीएस का पेपर चेक होगा, और जीएस का पेपर चेक होके कट ऑफ के ऊपर गए तो मेंस के पेपर आगे का मैटर। सो गाइज, इसलिए जिस तरह से सीसेट के पेपर की डिमांड है, ओके, अगर 11-12 से आपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या साइंस मैथ्स से किया है, यू विल बी वेरी फ्लेक्सिबल विथ नंबर्स, और ये बंदे इंजीनियरिंग वगैरह वाले सीसेट को काफी कॉन्फिडेंटली डील कर पाते हैं विथ लिटिल बिट कोचिंग दैट वी गिव इन द क्लास। अब इसमें भी ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को सीसेट पढ़ना ही पड़ता है, कुछ तो ऐसे ही सीसेट निकाल देते हैं। मतलब क्या, तो मेरा कजिन दैट आई टोल्ड यू, उसने जर्मनी से फॉरेंसिक साइंस वगैरह किया था, ही हैज वेरी गुड एप्टीट्यूड, सीसेट सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, तो वो एप्टीट्यूड पार्ट, तो फिर एंड वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आया और यहीं पे वो क्लास कर रहा था ग्रेजुएशन का अपना, सॉरी यूपीएससी का, और अगले साल अटेम्प्ट भी देना है, तो उसको जीएस का क्लास करना था, ऑप्शनल का क्लास करना था, और ये करते करते ओके इसी साल का अटेम्प्ट देना है, तो काफी लोड था उस पे, तो उसमें सीसेट पढ़े या ना पढ़े, ही हैज दैट क्वेश्चन। तो मैंने उसको एक सिंपल चीज बताई, मैंने बोला तुम 2015 के बाद का 2025 तक, मतलब 24 तक के एग्जाम का 9-10 पेपर यूपीएससी के सीसेट के ले लो, और उसमें से कोई भी 5-6 पेपर सॉल्व करना, और अगर 5 पेपर में हर पेपर में तुम्हारा सीसेट का स्कोर गोज इन द रेंज ऑफ 90-100, ओके, देन यू डोंट हैव टू इवन स्टडी सीसेट, आप डायरेक्टली एग्जाम को जाओ, आराम से क्वालिफाई कर लोगे। लेकिन 5 पेपर में अगर ओके 2-1 पेपर में भी आपका स्कोर 60 के नीचे ही है, 70 के नीचे है, देन यू कांट टेक सीसेट लाइटली, यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर द सीसेट अच्छे से। अब ये सीसेट का पेपर है क्या, अगर आपने 4th में जो बुद्धिमत्ता व्हाट वी कॉल पेपर जो होते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट जो होती है 6th के 7th में वगैरह, वही पेपर है, थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन, वरना तो क्वेश्चन सारे सेम ही होते हैं, पजल्स, टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क वगैरह, या सीक्वेंसेस जो सीरीज होती है, लॉजिकल रीजनिंग एटसेट्रा। सो पेपर इज डूएबल, बट यू नीड टू हैव अंडरस्टैंड द प्रॉपर ट्रिक्स दैट आर देयर। तो हमारी जो सीसेट की फैकल्टी है, वी विल बी दैट फैकल्टी विल हेल्प यू मास्टर दैट, यू डोंट हैव टू वरी, जो भी यहां क्लास में पढ़ाया जाएगा, जस्ट स्टडी दैट एंड गेट द कमांड ओवर इट। तो हम जब आगे आप पढ़ोगे, देन तब आके मुझे मिलना, देन पर्सनल मेंटरशिप में आई विल डिस्कस विथ यू, आपकी क्या लेवल है सीसेट में, कितना इंप्रूवमेंट जरूरी है नहीं है, या सीसेट पढ़ने की भी जरूरत नहीं, वो इंडिविजुअल लेवल पे सबके लिए देयर इट वोंट बी वन फॉर्मूला वन रूल, ओके। तो हम इंडिविजुअल लेवल पे उस पर डिस्कस करेंगे बाद में। तो फिर सीसेट पेपर में कौन से टॉपिक है, अब याद रखना, यूपीएससी ने भी बच्चों का थोड़ा टेक केयर किया है। यूपीएससी को भी पता है कि इंजीनियरिंग के बच्चे मैथमेटिक्स में बहुत कमांडिंग हो गए, ऑब्वियसली दे विल बी, लेकिन उनको ज्यादा एडवांटेज ना मिले, इसलिए यूपीएससी के जो 80 क्वेश्चन आते हैं इस पेपर में, सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस आर ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ओके। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आते हैं, मैथ्स के थोड़े आते हैं, एंड बाकी लॉजिकल रीजनिंग, पजल सॉल्विंग। इसके लिए आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो या नहीं हो, डजंट मैटर, आपको सिर्फ पजल सॉल्व करना है या उस तरह से डेटा इंटरप्रेट करना है, ये सारी चीजें आती है। तो यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो बहुत ईजी है, डायरेक्टली पैसेज पढ़ के आंसर्स लिखने हैं। सो यूपीएससी हैज ट्राइड टू इवन बैलेंस दैट, इक्वलाइज दैट, तो उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। देन इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, देन लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, ये भी चीजें लॉजिकल रीजनिंग की, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कुछ डिसीजन मेकिंग की केसेस देते हैं और आप क्या डिसीजन लोगे, वो केस स्टडी टाइप एक सिनेरियो दिया जाता है। एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, मतलब आपका इंजीनियरिंग का जो मैथमेटिक्स का पार्ट है, व्हाट वी कॉल जनरल मेंटल एबिलिटी। एंड देन बेसिक न्यूमरेसी, नंबर्स, ओके, कि रिलेशंस, सीक्वेंसेस वगैरह, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एटसेट्रा। एंड देन डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन कि भाई कल अगर आप आईएएस हो तो आपको नंबर्स समझने आने चाहिए, कोई भी रिपोर्ट पढ़ रहे हो डेटा इंटरप्रेट करने को आना चाहिए। सो बेसिकली डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स एटसेट्रा। तो ये भी जो पार्ट है आपका, दैट यूपीएससी के जो सीसेट पेपर का जो डिमांड है। सो बेसिकली क्या है सीसेट का पेपर। देन नेक्स्ट इज आपका पेपर, ये जो है यूपीएससी में मेंस की एग्जाम। अब हम मेंस के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। अब ये जो पेपर है, इफ यू आर महाराष्ट्रियन यू विल बी टेकिंग मराठी लैंग्वेज एज अ क्वालिफाइंग, या बाकी अपने अपने स्टेट के हिसाब से। देन इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफाइंग आई टोल्ड यू। देन मोस्ट डिमांडिंग आर एसे,
जीएस पेपर 1 2 3 4 टोटल 1750 मार्क, सॉरी 1250, एंड देन ऑप्शनल के दो पेपर 1750 मार्क का मेंस एग्जाम. तो नाउ विल डू इसका माइक्रो एनालिसिस, स्पेशली एसए, जीएस1, जीएस2 एंड जीएस4 3 पेपर सबका 2-3 का जो माइक्रो एनालिसिस है वो अलग से जो पॉलिटी की फैकल्टी है, इकोनॉमिक्स की फैकल्टी है वो लेंगे बाद में डेमो लेक्चर इसके. दे विल बी डिस्कसिंग विथ यू वो पेपर का टोटल डिटेल एनालिसिस क्या टॉपिक से नहीं है. आई विल बी फोकसिंग ऑन एसए, जीएस1, जीएस4 इन टूडेज लेक्चर. और ऑप्शनल के तो आपको ऑप्शनल जो भी लगाओगे वो फैकल्टी विल बी हेल्पिंग यू. अब ये सारे पेपर में मैंने कल ही एक चीज बताई थी, दैट मोस्ट स्कोरिंग आर एसए एंड इथिक्स पेपर. इनमें ही आपको आते हैं 140-150 मार्क. जीएस 1 2 3 आई टोल्ड यू, मार्क लिस्ट भी दिखाए. लेकिन ऐसा इसका ये मीनिंग ये नहीं है कि जीएस 1 2 3 यू कैन टेक लाइटली. ओके, जीएस 1 2 3 में आपको 90-80 तक पहुंचना भी है. अगर ऐसे होगा कि ऐसे ही में 150 निकाल दिए, बट जीएस 1 2 3 यू फेल टू इवन रीच द मार्क्स ऑफ 60-70, तो एनीवे यू विल नॉट बी गेटिंग इंटरव्यू का कॉल. ओके, दैट्स व्हाई उसमें एवरेज तो परफॉर्म करना है. बट पॉइंट इतना होता है ना, when you write mains exam, obviously you clear the prelims, or if you have cracked the prelim, then automatically आप में इतना जनरल अवेयरनेस होता है कि थोड़ा बहुत करंट पढ़ के इवन इफ यू गो टू द मेंस, ओके, और जो टॉपिक मेंस के सिर्फ मेंस में है, दे आर नॉट इन द प्रीलिम्स, वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह के, वो थोड़े बहुत रिवाइज करके इफ यू गो फॉर द मेंस एग्जाम, तो विद दैट बेसिक कमांड कोई भी बच्चा 80-90 तक ही मैनेजेस टू स्कोर. मोस्ट चैलेंजिंग आर आपका एसे का पेपर, इथिक्स पेपर एंड ऑप्शनल पेपर, जो आप प्रीलियम को नहीं पढ़ते, और इसमें राइटिंग स्किल मैटर्स ट्रिमेंडसली. ओके, सो ये सारे मैंने मार्क्स भी आपको दिखाए थे इन द लास्ट लेक्चर. ट्रेंड कि क्लियरली यू वी ऑब्जर्व द ट्रेंड, दैट ट्रेंड. फिर आता है गाइस आपका देन एसे का पेपर, इथिक्स का पेपर. आई विल जस्ट गिव यू ओवरव्यू, और फिर इथिक्स का पेपर का पूरा माइक्रो एनालिसिस आई विल डू टुमारो. डे आफ्टर टुमारो आई विल डू इथिक्स एंड एसे एंड इंडियन सोसाइटी. तो एसे पेपर का माइक्रो एनालिसिस, किस तरह के एसे में टॉपिक्स आ चुके हैं, कौन से टॉपिक पूछे, कौन कौन से एरिया से पूछे हैं, एवरीथिंग आई विल डिस्कस विथ यू. एंड इन वन लेक्चर वी विल डू द इंडियन सोसाइटी. ओके, ये जो टॉपिक है उसका माइक्रो एनालिसिस. और फिर अपनी अपनी फैकल्टी जब अपने लेक्चर्स लेंगे, दे विल डू रिस्पेक्टिव पेपर का माइक्रो एनालिसिस. अब इसमें वन मोर थिंग दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू, याद रखना गाइस कि स्ट्रैटेजी, मैंने क्या बोला था, कोचिंग सारा डेटा हम देंगे, सेल्फ स्टडी भी आप करोगे, बट उससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज पैरेलल जो होती है स्ट्रैटेजी. अब स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है समझो. सी गाइस, आपको जीएस पेपर 1 2 3 4 में आएंगे 20 क्वेश्चन. इथिक्स में 20 नहीं आते, लेकिन बिकॉज वहां पे केस स्टडी ज्यादा आती है, तो ओवरऑल आपको 13 क्वेश्चन आते हैं सेक्शन ए में, और 6-7 केस स्टडीज आती है सेक्शन बी में. सो ओवरऑल 20 के अराउंड, बट फिक्स नहीं. बट जीएस पेपर ये जीएस 1 2 3 में यू विल डेफिनेटली गेट द 20 क्वेश्चंस. अब आप इसका एनालिसिस करते हो ना, तो जीएस पेपर 1 में कौन से टॉपिक है आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इंडियन सोसाइटी, ये 3 टॉपिक्स है. अब हिस्ट्री में कौन से टॉपिक है, तो हिस्ट्री में एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, ये जो पार्ट है ना आपके प्रीलियम में है. ओके, लेकिन ये मेंस एग्जाम में नहीं है. मेंस एग्जाम में प्रीलियम में क्या क्या आपको, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया एंड आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर, ये 4 पार्ट है प्रीलियम्स में हिस्ट्री के. लेकिन एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया इज नॉट इन द मेंस. मेंस में आता है आपका मॉडर्न इंडिया, जो दोनों साइड है, प्रीलियम मेंस. देन आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर, दोनों साइड है, प्रीलियम मेंस. और इन दोनों के अलावा मेंस में एडिशनल 2 टॉपिक है, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया. अब ये 4 पेपर टॉपिक पे आपको आएंगे 6 क्वेश्चन, 6 या 7 क्वेश्चन. फिर ज्योग्राफी प्रीलियम में भी है, मेंस में है, मेंस में कुछ एडिशनल टॉपिक्स है ज्योग्राफी के, उस पे आएंगे 6 या 7 क्वेश्चन. और फिर इंडियन सोसाइटी एक सेपरेट पार्ट है जिसपे आएंगे आपको 6 या 7 क्वेश्चन. नाउ अंडरस्टैंड, ये 6-7 क्वेश्चन तो आप 4 किताबें पढ़ोगे तो 6 या 7 क्वेश्चन आएंगे प्रीलियम में, सॉरी मेंस में, और 7 क्वेश्चन भी आते हैं. तो हर एक क्वेश्चन को पकड़ के 15 एक मार्क के हिसाब से, 12.5 के हिसाब से 75 to 80 मार्क का वेटेज है. तो मेंस में 80 मार्क वेटेज के लिए आपको पढ़ना पड़ रहा है. अंडरस्टैंड, 80 मार्क के लिए यू हैव टू स्टडी 4 बुक्स.
वही 80 मार्क्स इंडियन सोसाइटी आपको सिर्फ मेरे क्लासरूम के नोट्स पढ़ने और कुछ बेसिक पार्ट के बुकलेट देंगे वो पढ़ने, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। 150 पेजेस से ऊपर नहीं पढ़ना है, 6 क्वेश्चन। और यही कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत मैटर करता है। अब ये कैसे मैटर करता है, आपको रियल एग्जांपल देता हूं। कोविड आया था, क्लासरूम सारे बंद थे, सो आई वाज एट होम, घर पे। एंड उस टाइम मेरी एक फ्रेंड जो अरुणाचल में पोस्टेड है, शी इज अ डिप्टी कलेक्टर देयर, हर हस्बैंड इज डीवाईएसपी, और उनका और एक डीवाईएसपी फ्रेंड था और उनके एमएलए। इन चारों ने मिलके अपने ट्राइब के जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए कोचिंग प्लान किया। तो अरुणाचल में स्टेट सिविल सर्विस का सिलेबस सेम है यूपीएससी जैसा। अब वो जो एग्जाम है ना, रेयरली आती है, मतलब उतना महाराष्ट्र जैसे बड़ा स्टेट नहीं है या यूपी बिहार जैसे, सो दे नीड लेस ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर्स, सो रेगुलरली एग्जाम नहीं होती। सो 2021 में वो एग्जाम हुई थी, 2020 में ऐड निकली थी। तो मैं उस टाइम पढ़ा रहा था, और ज्योग्राफी के भी अपने कुंडे सर है, वो भी पढ़ा रहे थे। एंड उनका प्रीलिम हुआ, तो ऑलमोस्ट एक 29 बच्चों को हम गाइड कर रहे थे। तो ये जो 29-30 बच्चे थे, उसमें से 13-14 बच्चों ने प्रीलिम क्रैक कर लिया एंड दे वेंट फॉर द मेंस। और मेंस की एग्जाम ना उनकी 2 महीने में ही आ गई। अब 2 महीने में उनको ऑप्शनल पेपर पढ़ना था, एसे एथिक्स मेंस में होता है वो पढ़ा नहीं था, वो पढ़ना था, आंसर राइटिंग फोकस करना था, और वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह ये सारे पेपर भी नहीं पढ़े थे। सो मैं जब उनके लेक्चर ले रहा था मेंस के बच्चों की, सो दे आस्क्ड मी कि सर अब टाइम ही नहीं है, कैसे करें, हम क्या करें। तो मैंने ब्लेटेंटली उनको बोल दिया, वर्ल्ड हिस्ट्री मत पढ़ो, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया मत पढ़ो, भूल जाओ दोनों पेपर। ऐसे पढ़ो, इथिक्स पढ़ो, इंडियन सोसाइटी पढ़ो, इस पे फोकस करो। और बहुत सारे बच्चों ने वो पढ़ा ही नहीं। और उनका लग देखना, जीएस पेपर 1 में जो 6-7 क्वेश्चन आए हिस्ट्री के, उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया वर्ल्ड हिस्ट्री पे। सारे क्वेश्चन आए मॉडर्न इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया वगैरह उस पे। और उसी बैच में से 7-1 बच्चे उसी साल सिलेक्ट भी हो गए डिप्टी कलेक्टर वगैरह पोस्ट पे। उनके मेरे यूट्यूब पे आपको उनके ये भी मिल जाएंगे वीडियोस, रिव्यूज। सो पॉइंट इज, ये जो है स्ट्रेटेजी, तो आप यहां पे जीएस 1 में अगर इंडियन सोसाइटी का पार्ट 7 क्वेश्चन कवर करा है, फोकस मोर ऑन दैट। सेम है पेपर 5 या जीएस पेपर 2 जीएस 3 में इंटरनेशनल रिलेशन, देन इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक, ये जो पार्ट है बहुत कम पार्ट है और उसमें 6-7 क्वेश्चन आते हैं। यू नीड टू स्पेंड योर एनर्जी मोर ऑन दिस पार्ट। और ये अगर आप ठीक से करो ना, तो प्री टू मेंस के बीच में जीएस 2-3 पे, 1-2-3 पे ऑन एन एवरेज भी परफॉर्म हो जाए और ये पार्ट ठीक से कर पाओ और उनमें अच्छे से परफॉर्म करो, देन यू विल इजीली रीच 80-90 मार्क्स। और फिर एसए में मेक श्योर यू गेट 140-150, इथिक्स में मेक श्योर यू गेट 140-150, ये दोनों ऑप्शनल में 140-150। ओके, you are through the mains. Okay, it is very calculative, it is much easier. Then so with this in mind, फिर आपका एसे का पेपर। अब एसे पेपर में क्या ट्रेंड अभी चल रहा है, तो एसे में गाइस आपको 2 सेक्शन में एसे लिखने होते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी, 4 टॉपिक्स ईच। पूरा जो यूपीएससी का सिलेबस था उसमें आपको एक ही एसे लिखना था 3000 वर्ड के लिए 3 घंटे में। अब भी यूपीएससी ने 2 ऐसे लिखने को बोला है, वर्ड लिमिट इज 1000 to 1200, 1200 में 2 ऐसे लिखने। सेक्शन ए 4 ऐसे आते हैं, सेक्शन बी में 4 ऐसे, आपको उसमें से एक ऐसे चूज करना है। नाउ अंडरस्टैंड, ऐसे के पेपर में देयर आर 2 थिंग्स, one thing very good about essay paper and one thing is very worst about essay paper. Good thing is that it is the only paper जिसमें आपको ऑप्शन मिलने वाला है, वरना जीएस के किसी भी पेपर में you have no option. Okay, जो सारे पेपर है जीएस के 20 में से 20 क्वेश्चन सॉल्व ही करने हैं, you will not get to select कि 20 में से 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, या ये 3 में से कोई एक सॉल्व करो या 3 में से 2 सॉल्व करो। ऑप्शनल में आपको थोड़े ऑप्शन मिल जाते हैं, बट यहां पे देयर विल बी नो ऑप्शंस एट ऑल। ऐसे एक अकेला पेपर है जिसमें यू गेट 4 में से एक ऑप्शन चूज करना है, विच इज एक्चुअली गुड। और ये आपको बहुत कैलकुलेटिव डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन आप चूज कर रहे हो। दैट आई विल टीच यू जब हम ऐसे का प्रैक्टिस करेंगे। एंड सेकेंड थिंग गाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑप्शन में द वर्स्ट थिंग अबाउट ऐसे पेपर कि अकेला ऐसा पेपर है ना जिसका कोई सिलेबस नहीं और जिसमें मार्किंग कैसे होगा इसके बारे में कोई आइडिया नहीं।
लेकिन मार्किंग कैसे करेंगे दैट वी विल हेल्प यू विथ, बट पॉइंट इज इसका कोई सिलेबस नहीं। तो फिर सिलेबस नहीं तो पढ़ना क्या? ओके तो फिर गाइज जीएस पेपर आप पढ़ रहे हो, इथिक्स पढ़ रहे हो, ऑप्शनल पढ़ रहे हो, ये आपको काम आता है टू डील विद द एसे पेपर। बट द प्रॉब्लम इज दैट गाइज कि लास्ट फ्यू ईयर जैसे यूपीएससी ने सिलेबस बदला, पहले वो एक ही ऐसे पूछते थे, वो 2 ऐसे पूछने लगे, सेक्शन ए में 4, सेक्शन बी में 4, उसमें से 2 लिखो एक एक। लेकिन 2019 से दे हैव चेंज द ट्रेंड। 2019 से पहले जो यूपीएससी ऐसे पूछता था वो सारे फैक्चुअल होते थे, बहुत सारे, कि एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, फॉरेन रिलेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस वगैरह थे। लेकिन 2019 के बाद ये जो फैक्चुअल एसेज है उन्होंने पूरे बंद कर दिए। अब यूपीएससी सारे ऐसे पूछता है टोटली कंसेप्चुअल, ओके, और थेरोटिकल या फिलोसॉफिकल, या इसको मैं बोलता हूं रिफ्लेक्टिव, जिनमें आपको बहुत चिंतन करना पड़ता है। और ऐसे मतलब क्या? फिलोसॉफिकल ऐसे कि देयर इज नो पाथ टू द पीस, पीस इज द पाथ, हैंड दैट रॉक द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड, ओके, विजडम फाइंड्स ट्रुथ, रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है या एसेज है ये ज्यादा पूछे जा रहे हैं। फैक्चुअल उन्होंने बंद किया, और विच इज वेरी लॉजिकल, क्योंकि फैक्चुअल नॉलेज आपका ऑलरेडी प्रीलियम में चेक किया, फैक्चुअल नॉलेज आपका जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में चेक कर रहे, ऑप्शनल में चेक कर रहे, इंटरव्यू में भी चेक होगा। तो भाई ऐसे का पेपर उनको एक ही चीज देखनी है, आपका एनालिटिकल स्किल, इन डेप्थ कितना सोच सकते हो, उस एक टॉपिक के बारे में कितने हाई लेवल पे आप जाके सोच सकते हो, कितना मल्टी डायमेंशनल सोच सकते हो, कितना कंसिस्टेंसी लिखते हो वगैरह, कितना चिंतन, यू रिफ्लेक्ट इन डीप वे ऑन दैट टॉपिक। तो इसलिए सारे ऐसे फिलोसॉफिकल आएंगे, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ओके। ऐसे और इथिक्स के लिए तो आपको कुछ नहीं करना अदर देन माय क्लासरूम, माय नोट्स, ओके, और मैं जो ऐसे बोलूंगा, जो प्रैक्टिस, वो पार्ट सिर्फ आपको खुद करना है, लिखना, मेरे पास लेके आना एंड मेरा फीडबैक इवैल्यूएशन करके लेना। विदाउट दैट यू विल नॉट बी एबल टू इंप्रूव इन एनी ऑफ दिस पेपर। अब इसमें फिर आई टोल्ड यू कि 2 ऐसे मस्ट बी रिटन, 1 फ्रॉम ईच सेक्शन। Bad thing is no syllabus, but good thing, and most of the essay they are asking is philosophical reflective, and they are expected to present the topic in a coherent manner, organize idea in logical sequence and write concisely. अब देखना यूपीएससी में तो ये भी नहीं लिखा कि आपके ऐसे पेपर में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन एमपीएससी स्टेट सिविल सर्विस का जो महाराष्ट्र का एग्जाम है, नया सिलेबस, उसमें उन्होंने एक लाइन तो डाली है, वही लाइन मैंने यहां पे डाल दी है, और यूपीएससी भी उसी पे ही जज करेगा आपको। सो दे आर that they are expected to, मतलब you students are expected to present the topic in a coherent manner। कि आप 1000 वर्ड में जब ऐसे लिखते हो ना, तो स्टार्ट टू एंड तक ऐसे शुड बी रीडेबल, कि फ्लो में जाना चाहिए, एंड यू शुड बी एबल टू ऑर्गेनाइज योर आइडियाज इन अ लॉजिकल मैनर, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सारा प्रॉपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए। अब ऐसे लिख रहे हो, इनिशियली कॉजेस लिखे, फिर सॉल्यूशन लिखे, और फिर एंड में फिर से कॉजेस लिख रहे हो, अरे भाई फ्लो में लिखो। ऐसे जैसे कोई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ो गवर्नमेंट का, ओके, कौन केस है, किसने किस पे केस की है, किसने केस किया, उसके क्या आर्ग्यूमेंट है, उसके खिलाफ दूसरे पार्टी ने क्या आर्ग्यूमेंट लाए, उनके लॉयर्स ने क्या आर्ग्यूमेंट दिए, फिर लॉ क्या बोल रहा है, और फिर मेरा क्या ओपिनियन है। एवरीथिंग इज लॉजिकल, जैसे ऑर्डर्स ड्राफ्ट होती है गवर्नमेंट्स की। तो आपको ऐसे में यही दिखाना है दैट अगर मुझे कल आईएएस बनाया जाता है, आईपीएस, आईआरएस, जो भी पोस्ट हो, आई विल बी एबल टू राइट कोर्ट ये ऑर्डर्स एक्सेट्रा, या कोई लेटर्स एक्सेट्रा इन अ वेरी लॉजिकल, कोहेरेंट मैनर एंड कंसाइजली टू द पॉइंट, इधर उधर का कुछ भी नहीं। ये स्किल वो आपसे चाहते हैं ऐसे में। अब ये कैसे लिखना करना, दैट वी विल डिस्कस इन द क्लासरूम। 80-90 घंटे में आपको ऐसे पढ़ाऊंगा। मोस्ट ऑफ द कोचिंग में, जहां मैं दिल्ली में भी पढ़ाने जाता था, तो मुझे 20 घंटे ही देते थे, 25 घंटे में ऐसे पढ़ाओ। अरे 250 मार्क का पेपर है, और हिस्ट्री वगैरह के टॉपिक जो है ना छोटे छोटे, इनको 50-50, 60-60 घंटे देते थे, ओके, एंड इसमें सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। नाउ दिस इज माय ओन इंस्टीट्यूट, सो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट टाइम, इसलिए आपसे इतना अच्छे से ऐसे राइटिंग मैं करवाऊंगा, कंटेंट पढ़ाऊंगा, इथिक्स का आंसर राइटिंग, कंटेंट सारा पढ़ाऊंगा, दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दीज 2 पेपर्स एट ऑल। एंड इसमें भी गाइज मैंने बोला देयर इज नो सिलेबस, तो फिर हम क्लासरूम में क्या करेंगे, कल मैं इस पे या ऐसे के माइक्रो एनालिसिस में और डिबेट में डिटेल में डिस्कशन करूंगा, लेकिन उसमें फिर 3 पार्ट्स पे हमें फोकस करेंगे क्लासरूम में। हाउ टू राइट ऐसे, तो भाई यू शुड नो, यू शुड बी एबल टू राइट ऐसे प्रॉपरली,
हाउ टू राइट ऐसे मतलब क्या कि भाई यू शुड बी एबल टू राइट कि ऐसे का इंट्रोडक्शन, बहुत सारे मेथड्स होते हैं इंट्रोडक्शन के, how to then frame a main body, how to add chart, how to add diagram, how to add linkers, how to disagree with essay, how to write solution to the essay, how to write conclusion. Conclusion भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं essay में. Then there is a necessary sufficient hypothesis, वो इंश्योर करना, how to define core terms essay के, ये बहुत सारी चीजें होती है. और छोटी छोटी और भी माइनर टिप्स होती है. कैन आई ऐड नंबर्स इन essay, कैन आई ऐड पॉइंटर्स इन essay, ये सारी चीजें आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू. सो 25-30 घंटे हम इसी पे फोकस करेंगे, हाउ टू राइट एसे. देन वी विल बी फोकसिंग ऑन नेक्स्ट पार्ट, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक पार्ट है, दैट इज व्हाट टू राइट इन एन एसे. कि सिलेबस नहीं है तो एसे में लिखेंगे क्या. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. मेरे पास बहुत एक इजी स्ट्रेटेजी है जो बहुत सारे कोचिंग करते ही है, कि अगर क्या टॉपिक पढ़ना ही पता नहीं सिलेबस में तो पढ़े क्या. सो गाइज व्हाट आई डू और विल बी डूइंग इन द क्लासरूम, यूपीएससी के पिछले 15-20 साल के सारे ऐसे पेपर वी विल एनालाइज. और ये जब आप पढ़ते हो ना तो आपको समझ में आएगा 8-10 थीम्स है जिसपे यूपीएससी ने कंसिस्टेंटली ऐसे पूछे. ओके, और वो 8-10 जो थीम है ना, उसमें से बहुत सारी थीम्स आपके जनरल स्टडीज के पेपर में कवर नहीं होती. ओके, फॉर एग्जांपल गांधी पे बहुत ऐसे आ चुके हैं. गांधी की किसी कोट पे ये जो मैंने अभी बताया था आपको कि देयर इज नो पाथ टू द पीस, पीस इज द पाथ. ओके, कि शांति के लिए कोई मार्ग नहीं, शांति ही मार्ग है. अब क्या होता है ना, आप जनरल स्टडीज में गांधी पढ़ोगे हिस्ट्री में, लेकिन हिस्ट्री का जो गांधी है दैट इज नॉट इनफ ओके फॉर यू टू राइट इस टाइप का ऐसे. इसलिए आपको हिस्ट्री में गांधी पढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसे में आई विल डिस्कस विथ यू गांधी एक्सट्रीमली इन डिटेल. तो गांधी की सारी आइडिया, नॉट जस्ट हिस्ट्री पे, ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, गांधी की सारी आइडिया, गांधीज आइडिया ऑन पॉलिटिक्स, गांधीज आइडिया ऑन इकोनॉमिक्स, गांधीज आइडिया ऑन फिलोसॉफी, गांधीज आइडिया ऑन कर्मा थियरी, गांधी के आइडियाज ऑन सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, गांधीज आइडिया ऑफ 7 सोशल सिंस, साइंस विदाउट रिलीजन इज साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी इज सिन, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज सिन, ये सारी चीजें. तो गांधी के बारे में इतना ओपन एंडेड पढ़ाई करेंगे कि गांधी पे आपको कुछ भी ऐसे आता है यू विल बी एबल टू राइट वेरी वेल. सेम वे आप जीएस पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी में जेंडर इश्यूज पढ़ोगे थोड़े बहुत, लेकिन मैं यहां पे जेंडर इश्यूज पे इतने ऐसे आते हैं कि 8-10 घंटे में आपको पूरा जेंडर इश्यू पढ़ाऊंगा. फिर जीएस में आप कहीं पे भी साइंस, रिलीजन, कल्चर, ये डिबेट नहीं पढ़ते. लेकिन यहां पे ऐसे में साइंस रिलीजन पे इतने ऐसे पूछे यूपीएससी ने कि मैं साइंस क्या होता है, रिलीजन क्या होता है, मिस्टिसिज्म क्या होता है, स्यूडो साइंस क्या होता है, ये सारी चीजें इतने डिटेल में पढ़ाऊंगा कि कोई भी ऐसे आया यू विल बी एबल टू राइट. तो ऐसे 8-10 थीम हम पढ़ेंगे. और होना क्या है कि जब 8-10 थीम आप पढ़ते हैं, व्हेन विल स्टडी, यूपीएससी विल बी आस्किंग यू 4 टॉपिक्स, and out of those 4 topics at least one will be overlapping with our these theme ka discussion, and you will be able to write that essay very confidently. So you already know how to write, you also have data what to write. Okay, uske baad you do the writing practice, get the essay evaluated, and this is a one time task. इसके बाद आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे कि ऐसे ऐसे लिखा जाता है. ये स्किल होती है, and skill don't once develop like swimming, you never forget to swim. So once you know how to write good essay and you have good data, you will be able to do this very confidently, easily. Okay, so that will be our approach for the ethics paper. और उसमें सारे previous year जो यूपीएससी के ऐसे टॉपिक आए थे, we will be doing their discussion also simultaneously. Then ethics का पेपर. Now ethics पेपर का भी पूरा कल हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे सारे टॉपिक वाइज. अब इथिक्स में जनरल स्टडीज पेपर 4, तो एंटायर सिलेबस आप पकड़ोगे इथिक्स पेपर का, तो उसका जो नाम है इथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड. तो ये जो इथिक्स वर्ड है, एप्टीट्यूड वर्ड जो है ना, दैट रिप्रेजेंट योर साइकोलॉजी पार्ट ऑफ द सिलेबस. इंटीग्रिटी जो वर्ड है ना, दैट रिप्रेजेंट योर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ऑफ द सिलेबस. एंड जो इथिक्स है दैट रिप्रेजेंट आपका फिलोसॉफी पार्ट. तो इस पेपर का एंटायर सिलेबस आप देखोगे तो इट्स गेट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फिलोसॉफी का जो पार्ट है इसमें आपको सारे थिंकर्स पढ़ने पड़ते हैं.
कि इथिक्स क्या, मोरालिटी क्या, मोरल, इमोरल, अमोरल, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स है, ओके, इथिकल रिलेटिविज्म, इथिकल यूनिवर्सलिज्म, इथिकल ऑब्जेक्टिविज्म, इथिकल सब्जेक्टिविज्म, या बहुत सारे जो थिंकर्स है, जॉन लॉक, जेरेमी बेंथम, कांत, एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस, बुद्धा, महावीरा, गांधी, भगवत गीता, बहुत सारे इथिक्स के जो थॉट्स है, ये सारा जो पार्ट है वैल्यूज रिलेटेड, मोरल वैल्यूज, दैट यू हैव टू स्टडी इन फिलोसॉफी पार्ट. फिर आता है, वंस यू नो द फिलोसॉफी, व्हाट मैटर्स इज साइकोलॉजी. कि आप जब एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हो, ओके, देन यू नीड टू नो द साइकोलॉजी ऑफ पीपल हु वर्क अंडर यू, एंड यू ऑल्सो नीड टू नो द साइकोलॉजी ऑफ द सोसाइटी. आप डिपार्टमेंट हैंडल कर रहे हो, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे सिचुएशंस में, सो यू नीड टू नो द साइकोलॉजी एस्पेक्ट ऑल्सो. तो उसमें बहुत सारे टॉपिक है, लाइक एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस. अब दंगे वगैरह भी लोग करते हैं, भाई ऐसा लोग क्यों सोच रहे हैं, दंगे वगैरह क्यों हो रहे, ओके, इस तरह की चीजें समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी, प्रेजुडाइसेस, स्टीरियोटाइप्स, एटसेट्रा. सो दैट इज योर साइकोलॉजी पार्ट. एंड देन यू हैव द एडमिनिस्ट्रेशन. अब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, कि आप ब्यूरोक्रेसी को जो चला रहे हो, तो एडमिनिस्ट्रेशन, ये पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड ही पार्ट है, लेकिन यहां पे आपको पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का आंसर नहीं लिखना है. इथिक्स पेपर का एडमिनिस्ट्रेशन इज टोटली डिफरेंट देन आपका जो पॉलिटी का GS2 का पेपर है. अगर इथिक्स पेपर को, और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या कर रहे हैं ना, पॉलिटी का जो टीचर है ना वही इथिक्स पढ़ाता है, और इसलिए फिर इथिक्स में मार्क ही नहीं आते और बच्चे रोते रहते हैं. भाई इथिक्स इज टोटली सेपरेट पेपर, उसके आंसर भी टोटली फिलोसॉफिकल लेवल पे होने चाहिए. और पेपर 2 में GS2, GS3, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में आप आंसर लिखो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स वाले. पेपर 4 को पॉलिटी इकोनॉमिक्स का पेपर जो बनाता है ना, ही गेट्स स्क्रूड. अब ये इसलिए बच्चे लिखते हैं कि GS2, GS3 के आंसर GS4 में, बिकॉज उनको थ्योरीज ही पता नहीं होती. बट क्लासरूम में मैं आपको इतनी थ्योरीज पढ़ाऊंगा दैट यू डोंट हैव टू वरी, ओके, कि मुझे लिखने को नहीं आ रहा. आपको पेपर 2, पेपर 3 का डेटा सोचना भी नहीं पड़ेगा. यू कैन टोटली फोकस ऑन आपका इथिक्स पेपर, टोटली फिलोसॉफी पेपर, टोटली रिलाई ऑन माई कंटेंट, माई बुक, माई नोट्स, एंड क्लास में जो हम डिबेट करेंगे उस पर. देन सो फिर ये जो टोटल पेपर है, उसके सिलेबस का माइक्रो एनालिसिस विल बी फिलोसॉफी पार्ट का. तो क्या क्या सिलेबस के टॉपिक्स हैं उन्होंने दिए, कल मैं उसको बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, अभी जस्ट ओवरव्यू करते हैं. तो पहला टॉपिक जो है इस पेपर में, इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, इसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ इथिक्स इन ह्यूमन एक्शन. मतलब क्या कि व्हाट इज इथिक्स. तो इस टॉपिक में इसेंस ऑफ इथिक्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इथिक्स, कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब क्या, व्हाट इज इथिक्स, व्हाट इज मोरालिटी, ओके, या इसेंस मतलब नीति शास्त्र की नैतिकता का स्वरूप क्या होता है. इथिक्स क्या, मोरालिटी क्या. सिंपली इतना ही इश्यू है. इथिक्स जो होता है ना, यू डू इट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर. मोरालिटी इज समथिंग यू डू इट आउट ऑफ ओन विल. तो आप सिग्नल क्यों फॉलो कर रहे हो. सिग्नल इसलिए फॉलो कर रहे हो कि 500 रुपए का फाइन होगा, मामू खड़ा है, सीसीटीवी है, फाइन लगेगा. यू आर डूइंग राइट थिंग, यू आर इथिकल, बट यू आर नॉट मोरल. मोरालिटी मतलब क्या, आपको लगता है मैं जो चीज कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, कि ये सिग्नल फॉलो करना सही है. एज अ सिटीजन इट्स माई ड्यूटी टू ओबे द सिग्नल, दैट इज मोरालिटी. तो ये बेसिक बेसिक कंसेप्ट हमें सीख रहे हैं. मोरल क्या होता है, इमोरल क्या होता है, अमोरल क्या होता है. आपने किसी का मर्डर किया, इमोरल. आपने किसी की जान बचाई, मोरल. बट आप किसी नेशनल पार्क में घूमने गए हो और किसी टाइगर ने हमला किया किसी आदमी पे और टाइगर ने उसको मार दिया, अब टाइगर को क्या इमोरल बोलेंगे. टाइगर नाइदर मोरल और इमोरल, मोरालिटी उसको समझ में ही नहीं आती, तो उसको इमोरल भी नहीं बोला जा सकता, टाइगर को अमोरल बोला जाता है. सो इस तरह के जो कंसेप्ट है इथिक्स के, बेसिक बेसिक आपको पढ़ने. फिर डिटर्मिनेंट्स, कि डिटर्मिनेंट्स मतलब क्या, कि नीति शास्त्र में हाउ यू डिफाइन व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं. कि आपके घर के पास में देयर इज सम किड हु इज सिक, आपको उसकी जान बचानी है, आपके पास पैसे नहीं है, सो विल यू रॉब अ मेडिकल शॉप टू सेव अ बेबी. अब यू रॉब अ मेडिकल शॉप टू सेव अ बेबी, तो एक बच्चे की जान बची. इथिक्स इज डिटरमाइंड बाय रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस. बट आपको लगता है नहीं, चोरी करना गलत है, भले किसी की जान बचे, चोरी सही नहीं है, आई शुडंट रॉब मेडिकल शॉप. तो आपके लिए इथिक्स लाइज इन कर्मा, और इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन मेकिंग है, थियरीज है. तो फिर इथिक्स किस में होता है, आपके एक्शन में होता है, फिर रिजल्ट में होता है. यही भगवत गीता में कृष्णा अर्जुन को बोल रहे थे कि भाई तू परिणामों की चिंता मत कर,
कर्म की, तू कर्म पे फोकस कर, परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो तुम कर्म करो, सकर्म करो, अनासक्त कर्म करो और निष्काम कर्म करो। सो तू सिर्फ कर्म कर, नीति शास्त्र में रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आते। तो भाई डिटर्मिनेंट्स क्या है एथिक्स के, ये टॉपिक हमें डिस्कस करना है। एंड फिर कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या कि मैं नीति शास्त्र से क्यों बिहेव करूं, क्या फायदा है नीति शास्त्र से बिहेव करने का आपके लिए, देश के लिए, सिस्टम के लिए, लॉज के लिए। लॉज इथिकल क्यों होने चाहिए, सोसाइटी के लिए इथिक्स क्यों जरूरी है। ओके, अब बहुत सारे लोग इथिकल इसलिए बिहेव करते हैं कि उनको लगता है मरने के बाद मुझे नरक ना मिले। लेकिन अगर आपको कल पता चले कि नरक होता ही नहीं है, स्वर्ग नरक कुछ नहीं, भगवान ही नहीं है, देयर इज नो गॉड अप देयर, तो भाई लोग क्यों इथिकल बिहेव करना, ये जरूरी नहीं है। फिर कोई ऊपर है ही नहीं जजमेंट देने वाला, तो फिर इथिकल बिहेव ही क्यों करे। तो यही आप हमें डिबेट करनी है कि व्हाई वी एक्ट इथिकल, व्हाट इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बीइंग इथिकल फॉर यू, फॉर सोसाइटी, फॉर अ कंट्री, फॉर अ सिस्टम, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारा इथिकल क्यों होना चाहिए। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है, यू विल एंजॉय दिस पेपर लॉट। फिर उसमें एक टॉपिक आता है डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, इसमें मैं कल डिस्कशन करूंगा, बहुत डेप्थ टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक है ये पेपर का, कि डायमेंशन ऑफ एथिक्स में 3 आते हैं, मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, और एक भी आता है अप्लाइड एथिक्स। और इसमें बहुत सारी थ्योरीज आती है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग सेपरेटली। देन आता है आपका इथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशन। इथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशन मतलब क्या कि आपको क्या सही गलत लगता है, और प्राइवेट लाइफ में और पब्लिक में, मतलब सर्विस में क्या सही लगता है। सिंपली इतना ही है, टुमारो यू गॉट सिलेक्टेड इनटू सिविल सर्विस एंड यू बिलोंग टू कास्ट और रिलीजन विच डज नॉट ईट नॉनवेज, लेकिन आप यू आर अपॉइंटेड इन अ डिस्ट्रिक्ट और वहां पे मिड डे मील स्कीम इज देयर, और मिड डे मील स्कीम में आपको खाने में बच्चों को फिश या नॉनवेज सर्व करना है, अंडे सर्व करने। अब आपको तो नॉनवेज खाना पसंद नहीं, लेकिन गवर्नमेंट तो आपको बच्चों को नॉनवेज खिलाना है, तो आपके पर्सनल इथिक्स एंड प्रोफेशनल इथिक्स दोनों में क्या हुआ, क्लैश। तो हाउ टू हैंडल दैट, ओके, दैट इज बेसिकली टॉपिक इथिक्स इन प्राइवेट रिलेशन एंड इथिक्स इन पब्लिक रिलेशन। कल मैं इस पे डिटेल में बात करूंगा सिलेबस के ओवरव्यू में। देन आगे का टॉपिक है ह्यूमन वैल्यूज एंड लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर, रिफॉर्मर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। अब ये इश्यू जो है ना, ये टॉपिक पेपर, इसमें बहुत सारे थिंकर्स जो मैंने आपको बताया था हमें पढ़ने पड़ते हैं इथिक्स में, ओके, ग्रेट थिंकर्स लाइक एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस, बुद्धा, महावीरा, गांधी, भगवत गीता, बाबा साहेब, जेरेमी बेंथम, इमैनुअल कांट, जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन लॉक, बहुत सारे थिंकर्स के बारे में मैं पढ़ाऊंगा, बट इट इज वेरी ओपन एंडेड टॉपिक, क्योंकि इतने सारे पढ़ा कि यूपीएससी ने गुरु नानक जी पे क्वेश्चन पूछा था, तो आपको भी बहुत थोड़ा सेल्फ स्टडी करना पड़ता है। ओके, क्लास में ही अगर सारे पढ़ाते बैठा मैं, तो क्लास इथिक्स का ही क्लास 200 घंटे चलेगा, ओके, विच विल बी इम्पॉसिबल। तो जो इंपॉर्टेंट लोग हैं वो आपको भी सेंस आना चाहिए, जैसे यूपीएससी पढ़ रहे हो कौन कौन इंपॉर्टेंट लोग हैं। तो फॉर एग्जांपल महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, आदि शंकराचार्य, कबीर जी, तुलसीदास, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, संत अपने चैतन्य महाप्रभु, श्रीमंत शंकरादेव, ओके, ये जो सारे बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मीराबाई, गुरु नानक जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक वगैरह, या मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में अब्दुल कलाम वगैरह, होमी जहांगीर बाबा एटसेट्रा। तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में यू हैव टू डू सम सेल्फ स्टडी ऑल्सो। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनके थियरीज आप घर पे नहीं समझ पाओगे, ऐसे थिंकर्स को आई विल बी डिस्कसिंग इन द क्लास। फिर उसमें आता है क्वेश्चन, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। ये जो सारी हम चीजें सीख रहे हैं, वैल्यूज, मोरालिटी, इथिक्स, इथिकल अनइथिकल, ये कहां से हम सीखते हैं? क्या आप जब पैदा हो गए तभी सीख के आए थे, या ये चीजें सोसाइटी से हम सीखे? और अगर सोसाइटी से सीखे हम, तो सोसाइटी में कौन ये चीजें सिखा रहा है? फैमिली, सोसाइटी, योर मदर, फादर, योर रिलेटिव्स, योर एल्डर पेरेंट्स एटसेट्रा, या आप एजुकेशन स्कूल में जाके ये जो सारी चीजें सीख रहे हो। सो द रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आता है आपका साइकोलॉजी पार्ट। साइकोलॉजी पार्ट में ओके, पहला टॉपिक है एटीट्यूड। सो एटीट्यूड व्हाट वी कॉल हिंदी में वृत्ति, ओके। सो एटीट्यूड में आपको क्या क्या टॉपिक, अब ये थोड़ी टेक्निकल है, सो आई विल डिस्कस देम टुमारो इन डिटेल। सो एटीट्यूड का कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन,
कि जो वृत्ति होती है, आई लाइक विद्या बालन, सो आई हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स विद्या बालन, आई डोंट लाइक कंगना, आई हैव नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स कंगना। सो ये एटीट्यूड जो है, हमारी सोच किसी चीज की तरफ, ये कैसे डेवलप होती है? ओके, तो उसमें तीन चीजें आती है एटीट्यूड में, दैट इज एटीट्यूड में होते इमोशंस, कॉग्निशंस एंड बिहेवियरल टेंडेंसी। कि मैंने विद्या बालन का मूवी देखा एंड मेरी सोच बन गया, ओ शी इज ऑसम एक्ट्रेस, कॉग्निशन। फिर उसका मूवी देख के मुझे बहुत प्लीजेंट फील हुआ, फीलिंग, ओ ऑसम फीलिंग, सच अ ऑसम एक्ट्रेस। एंड मुझ में टेंडेंसी क्रिएट हो गई कि नेक्स्ट टाइम मैं उसका मूवी देखने जाऊंगा, कोई भी मूवी रिलीज होता है तो। एंड ये तीनों कंपोनेंट, भावनाएं, सोच और वर्तन, तीनों साथ में आ गए। अफेक्शन, बिहेवियर, कॉग्निशन, ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड बोला जाता है। ओके, आई डेवलप एटीट्यूड टुवर्ड्स विद्या बालन। सो इसी को बोला था एटीट्यूड का कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन। फंक्शन मतलब क्या कि व्हाई पीपल होल्ड एटीट्यूड। तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, दैट आई विल डिस्कस विथ यू बाद में। एंड ये जो एटीट्यूड है, ओके, कैसे शेप करते हैं हमारे थॉट्स को, बिहेवियर को। व्हाट इज द रिलेशन ऑन इन्फ्लुएंस ऑफ एटीट्यूड विथ थॉट एंड बिहेवियर। अब देखना, ये जो सारे टॉपिक्स है ना जो आप पढ़ रहे हो, ये आपको जब पढ़ने हैं तो एक याद रखना कि ये टॉपिक आपको बहुत अप्लाइड ओरिएंटेशन से पढ़ना है। ये टॉपिक थ्योरेटिकली बिल्कुल काम का नहीं है पढ़ना। ये पेपर थ्योरेटिकल लेवल पे नहीं समझना, एप्लीकेशन लेवल पे समझना है। मतलब क्या, सी आप में से कोई है क्या कि जिसको गंदगी पसंद है, कि नहीं गंदगी के बहुत फायदे हैं, आपके पास सोच है, गंदगी देख के आपको बहुत प्लीजेंट फीलिंग आती है। ओके, और आपको लगता है नहीं मैं हर जगह पे गंद फैलाऊंगा, मुझे बहुत अच्छा फील होगा गंद फैला के। नो वन लाइक्स गंदगी। ओके, देन इंडिया इतना अनहाइजीनिक क्यों है? इंडिया की सड़कों पे इतनी गंदगी क्यों है? एटीट्यूड तो है ना, बिहेवियर में क्यों नहीं आ रहा? यही चीजें आपको समझनी है बहुत अप्लाइड लेवल पे, तो ही ये पेपर में मार्क आते हैं। एंड सेम वे एटीट्यूड में फिर और एक छोटा टॉपिक है सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएजन। ओके, सामाजिक प्रभाव, कि आप जो बिहेवियर करते हो उसका सोसाइटी कैसे इंपैक्ट डालती है आपके बिहेवियर पे। मतलब क्या, सपोज आप रोड से जा रहे हो और आपके सामने एक्सीडेंट हुआ, 8-10 लोग आगे बाजू में और देख रहे हैं, आप देखोगे और निकल जाओगे, आप उसकी मदद बिल्कुल नहीं करोगे। लेकिन यही आप सुनसान रोड पे अकेले जा रहे हो और आपके सामने किसी का एक्सीडेंट हुआ, आप अकेले हो, देन मोर अ चांस यू विल स्टॉप टू हेल्प दैट पर्सन। तो क्या हुआ, जब अकेले हो तो आपने उसकी मदद की, लेकिन बहुत सारे लोग थे, यू डिड नॉट हेल्प। व्हाट एग्जैक्टली रिड्यूस्ड योर हेल्पिंग नेचर? जस्ट दूसरे लोग थे तो आपका हेल्पिंग नेचर कम हुआ। तो यही है सोशल इन्फ्लुएंस, दूसरे लोगों का आपके बिहेवियर पे जो इंपैक्ट हो रहा है, सोशल इन्फ्लुएंस। अब ये सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है, मैं आपको बहुत सारे वीडियोस क्लास में दिखाऊंगा, बट जस्ट टू शो यू फॉर नाउ एक वीडियो ही दिखा देता हूं, डायरेक्टली देख लेना। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आई विल बी शोइंग लेटर ऑन। कि एक लिफ्ट एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि सिंपल, और ऐसे में 100 एक वीडियोस दिखाऊंगा क्लास में बाद में टू मेक द यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इजीली। तो उन्होंने क्या किया कि एक लिफ्ट में साइंटिस्ट ने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया। एक लिफ्ट फ्लोर पे थी, वो लिफ्ट सेकंड फ्लोर पे गई। जैसे सेकंड फ्लोर पे दरवाजा खुला, 4 लोग अंदर गए, 3-4 लोग जो एक्सपेरिमेंट के लोग थे, और उनको बोला कि लिफ्ट के अपोजिट साइड मुंह करके खड़े हो जाओ। सब लोग आए, उल्टा मुंह करके खड़े हो गए। अब जो बंदा अंदर था लिफ्ट में वो कंफ्यूज हो गया। जनरली यू वी स्टैंड लिफ्ट के डोर की तरफ मुंह करके, ये सारे लोग उल्टे खड़े हो गए। तो ये उल्टे खड़े होने के बाद वजह से उस बंदे पे क्या उसका इंपैक्ट हुआ। सो जस्ट सी द वीडियो एंड यू विल अंडरस्टैंड वो एंटायर कॉन्सेप्ट क्या है। Is a candid star. These folks who are entering, a man with a white shirt, a lady with a trench coat, and subsequently one other member of the state will face the reading. And you'll see how this man in the trench coat tries to maintain his individuality. A little by little, he's his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Now we'll try it once again.
Here's the candidate subject. Here comes the candidate staff, 3 of them at least. And this man has apparently been in groups. Now, here's a fella with his hat on in the elevator. First, he makes a full turn to the rear, and Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door. Everybody's changed positions. I want to see if we can use. I want to see if we can use group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. Notice they take off their hats. And now, do you think we could reverse the procedure? Watch. So basically, what was the topic of social influence? In one video I showed you. Then there is a topic of emotional intelligence, भावनिक बुद्धिमत्ता, what we call it. So emotional intelligence, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली यूपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक, इमोशनल इंटेलिजेंस. ये क्या टॉपिक है दैट आई विल डिस्कस इन डिटेल लेटर ऑन. सो यहाँ पे सिर्फ आपको कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ये कॉन्सेप्ट क्या है और वो एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना एक्सपेक्टेड है. व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस टॉपिक, टेक्निकलिटी विल डिस्कस लेटर ऑन. सबसे ज्यादा क्वेश्चन यूपीएससी ने इस पे पूछे हैं. And most important concept in all workplaces. As a leader, you need extreme emotional intelligence. So emotional intelligence होता क्या है, just उसके लिए example to give you कि भाई गांधी जी, understand extreme level of emotional intelligence. आप लोगों को ये बोल रहे हो, ये कन्विंस कर रहे हो कि भाई अंग्रेज आपको मारेंगे, मार खाओ, जेल जाओ, लेकिन उल्टा मत मारना. Because we are creating the democracy, we are building the democracy. और करोड़ों लोग मार खाते भी हैं, जेल भी जाते हैं. एंड लिसन टू यू, इस लेवल पे किसी को इंस्पायर करना. शिवाजी महाराज के पास सिर्फ पुणे की जागीर थी, उसमें भी किले भी उनके हाथ में नहीं थे. किले सीधा राजा कंट्रोल करता था आदिल शाही का, और जागीर सिर्फ उनको दी थी. लेकिन उतनी जागीर और 500-600 सोल्जर लेके शिवाजी महाराज ने पूरे जो मुगल एम्पायर थी उसको डिस्ट्रॉय करके इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया. इमेजिन इस लेवल पे कि लोग आपके लिए जान देने को तैयार है, मरने को तैयार है, इतनी बड़ी रिस्क लेने को तैयार है. इस लेवल पे लोगों से कनेक्ट करना, बॉन्ड करना, उनको इंस्पायर करना, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस. सो कल जब आप एक आईएएस बनते हो या मिलिट्री में हो, वॉर चल रहा है, आपके नीचे जो सोल्जर है, हाउ यू कैन इंस्पायर देम, कनेक्ट विद देम. और इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स यू शुड बी वेरी गुड एट मैनेजिंग योर ओन इमोशंस, रेगुलेट योर ओन इमोशंस एंड मैनेज एंड रेगुलेट इमोशंस ऑफ other people. That's what we call emotional intelligence. And then, okay, psychology part में there is a topic, then psychology में वो सारे topics है, and then come administration का part. अब ये जो administration का part है वो भी काफी technical है, इसको पूरा आधा एक घंटे ठीक से समझाना पड़ेगा, but that I will discuss separately. लेकिन इसमें administrative values पे काफी focus है, like public civil service values and ethics in public administration, या ethical concern and dilemmas in government and private sector. Then laws, rules, regulation and conscience as the source of ethical guidance. अब ये जो टॉपिक है ना, laws, rules, regulation and conscience as the source of ethical guidance, इसका मीनिंग क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि भाई आप जो कोई बिहेवियर कर रहे हो, आप ये क्यों कर रहे हो? आप खुद के कॉन्शियंस से कर रहे हो, अंतरात्मा से, या बिकॉज ऑफ लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन. और इसमें कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है इथिक्स में या देश चलाने के लिए? तो आप सिग्नल फॉलो कर रहे हो. द एग्जांपल आई गिव यू, व्हाई यू फॉलो सिग्नल? अगर आपकी अंतरात्मा आपको बोल रही है, कॉन्शियस, एज अ सिटीजन इट इज अ गुड थिंग टू डू, देन दैट्स आपका
दैट इज कॉन्शियस इज डिक्टेटिंग आपका बिहेवियर, लेकिन आप इसलिए सिग्नल फॉलो कर रहे हो बिकॉज देयर इज अ सीसीटीवी कैमरा, यू विल गेट फाइंड, देन यू आर बिहेविंग इथिकल बिकॉज ऑफ लॉ। लेकिन इसमें लॉट ऑफ डिबेट इज देयर, विल डिस्कस। अब इशू क्या है कि लॉज का प्रॉब्लम क्या है कि एज लॉन्ग एज लॉज एग्जिस्ट, कि भाई सीसीटीवी कैमराज है, ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, पीपल विल फॉलो द सिग्नल। जिस दिन ट्रैफिक पुलिस नहीं, सीसीटीवी कैमरा नहीं, सिग्नल बंद पड़ गए, लोग कुछ ऑर्डर में नहीं रहेंगे, कोई डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे। इसलिए लॉज से आप देश ठीक से चला नहीं सकते, लोगों की मेंटेलिटी भी होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह भी है कि सड़क का हर बंदा गांधी अंबेडकर हो, बुद्धा महावीरा हो, और उसको समझ में आए कि सिग्नल फॉलो करना क्यों सही है, और इसलिए वो सिग्नल फॉलो कर रहा है। इट इज वेरी आइडियलिस्टिक, आदर्शात्मक। ये होना बहुत इंपॉसिबल है। इसलिए फिर आपको करना क्या पड़ता है, ओके, यू नीड ओके द फोर्स ऑफ लॉ। डंडे के डर से, फाइन के डर से लोग फॉलो कर रहे हो, दैट इज बिग डील, एंड दैट्स व्हाई लॉज, रूल्स, रेगुलेशन एंड कॉन्शियंस एज अ सोर्स ऑफ इथिकल गाइडेंस। तो इस तरह के टॉपिक्स है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है इथिक्स के पार्ट में। अब ये जो सारा सिलेबस का पार्ट है, दैट वी विल बी, आई विल सेपरेटली विल डिस्कस विथ यू, ओके। टेक्निकल पार्ट है, टुमारो पूरा इथिक्स पे वी विल बी हैविंग लेक्चर, माइक्रो एनालिसिस ऑफ द टॉपिक। फिर उसके बाद आपका जीएस पेपर 1। अब जीएस पेपर 1 का जो सिलेबस है, दैट आई विल गिव यू द माइक्रो एनालिसिस, क्योंकि इसका भी एक थोड़ा पार्ट आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू, दैट इज इंडियन सोसाइटी। सो उसमें देखना इंडियन कल्चर, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक पेपर का नाम क्या है, इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ओके। तो इसमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, ये जो पार्ट है, बिकॉज इसमें इंडिया का कल्चर बहुत स्ट्रांग है, एंड दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कम्स ऑन इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या आता है, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, एंड देन ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड वो सेपरेट पार्ट है, इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज। सो 3 सेपरेट टॉपिक्स है, 3 टॉपिक्स पे 7-7 क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री पे 7 है, 6-7, ज्योग्राफी पे 6-7 एंड इंडियन सोसाइटी पे 6-7, दैट आई टोल्ड यू। उसमें सब टॉपिक देखना, इंडियन कल्चर, salient aspects of art form, literature, architecture from ancient to modern times. So इंडिया के जो आर्किटेक्चर है, लिटरेचर है, आर्ट फॉर्म्स है, ओके, एंशिएंट से लेके मॉडर्न टाइम तक, वो सारे पढ़ने। बट गाइस इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, इंडिया का कल्चर इतना वास्ट है कि इंडिया में फॉर एग्जांपल 8 क्लासिकल डांसेस है, कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मलयालम, दिस भरतनाट्यम वगैरह। सो 8 क्लासिकल डांसेस आर देयर, ओके, ओडिसी एटसेट्रा। और इसके बाद रीजनल डांसेस, लोकल फोक डांसेस जो बोलते हैं, लावनी, भांगड़ा एटसेट्रा, बहुत सारे फोक डांसेस भी है। अब गाइस इसमें फिर कितना पढ़ोगे डांस पे। इंडिया में लिटरेचर, इतनी किताबें, आर्ट एंड कल्चर में लिटरेचर पार्ट इज देयर, सिग्निफिकेंट पार्ट, एंड सेम में आर्ट फॉर्म्स, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, इतना वास्ट सिलेबस है। स्कल्पचर, टेम्पल आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर में भी नागारा स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल में भी फिर उसके वेरिएशंस आते हैं, ओके, कि चोला आर्किटेक्चर, पल्लव आर्किटेक्चर, विजयनगर आर्किटेक्चर वगैरह। देन नगारा में भी अलग अलग वर्जन्स आते हैं, चंडेलास का, उड़ीसा का वेरिएशन, राजस्थान का वेरिएशन। देन महाराष्ट्र में हेमाडपंथी आर्किटेक्चर आता है, ऐसे लोकल रीजनल भी आर्किटेक्चर्स आते हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर। देन स्कल्पचर, स्कल्पचर लाइक मूर्तियां जो बनी बुद्धा की, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, ये इतना वास्ट है ना। और इतना पढ़ के प्रीलियम में आएंगे 3-4 क्वेश्चन, मेंस में आएंगे 2-1 क्वेश्चन। सो व्हेन यू स्टडी यू हैव टू अंडरस्टैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेयर टू स्टॉप। भाई कितना पढ़ूं 2-4 क्वेश्चन के लिए, और कहां पे रुकूं, और कौन सा पढ़ना ही चाहिए। तो आपको एक सेंस आना चाहिए, और क्लासरूम में भी हम बताएंगे कि कौन सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पढ़नी है, और कौन सी चीजें प्रॉब्लमेटिक है, बस इससे ज्यादा इस पे मत पढ़ो, ओके। और कुछ चीजें इतनी रीजनल लाइक डिफिकल्ट होंगी कि किसी को भी आंसर करने नहीं आएगा, रहने दो वो पार्ट। लेकिन जो मोस्ट सिग्निफिकेंट चीजें हैं वो तो आपको पढ़नी होती। तो एक स्ट्रैटेजी है उसकी, जो बाद में क्लासरूम में पढ़ाएंगे, क्या पढ़ना और क्या छोड़ना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। फिर मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया तो आप प्रीलियम में पढ़ते हो, मेंस में वही पार्ट एनालिटिकली पढ़ना है। सो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अबाउट मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी,
until the present significant events, personality, issues. So middle of the 18th century मतलब 1750 से लेके इंडिया का इंडिपेंडेंस 1947 की सारी हिस्ट्री और उसमें जो इंपॉर्टेंट लोग थे, पर्सनैलिटीज थी, वो सब. एंड देन फ्रीडम स्ट्रगल, वेरियस स्टेजेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. और देश के अलग अलग हिस्सों से जो फ्रीडम स्ट्रगल में मूवमेंट्स हुई वो आपको पढ़नी है. एंड देन वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, which will include events from 18th century such as industrial revolution, world war, withdrawal of national boundary, colonization, decolonization, political philosophy like communism, capitalism, socialism, etc. So history of the world, ये जो पार्ट है इसमें उन्होंने क्लियर कर बोला है कि इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स. तो दुनिया का पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, और 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स भी दुनिया बहुत बड़ी है, इसके भी बहुत सारे इवेंट्स हुए, ये भी सारे नहीं पढ़ने. यहां पे भी कितना पढ़ना और कहां रुकना कि वर्ल्ड हिस्ट्री पे एक भी क्वेश्चन ना आए, एक आध क्वेश्चन आए, मैक्स 2 क्वेश्चन आए, 3 तो क्वेश्चन एक साल में कभी नहीं आए. ओके, और ये पार्ट तो प्रीलियम में है ही नहीं, तो यहां पे भी कितना पढ़ना और कहां पे रुकना. तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो आपको पता ही होनी चाहिए. अमेरिकन रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, अमेरिकन इंडिपेंडेंस, रशियन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर एटसेट्रा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और सो ऑन. सो इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आपको बहुत अच्छे से पढ़ने होते हैं. उस पे क्वेश्चन आया गुड, बहुत कुछ ऑड पे आया तो क्लास में कुछ तो डिस्कशन हुआ होता है कि आप कुछ तो लिख पाओ, और बहुत ही डिफिकल्ट आया, डोंट वरी, इफ यू डोंट नो द आंसर अदर्स विल ऑल्सो वोंट बी नोइंग द आंसर. देन आता है पार्ट इंडियन सोसाइटी. ये इथिक्स, एसे, इंडियन सोसाइटी हम एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा कमांड आ जाती है. तीनों ओवरलैपिंग पेपर सब्जेक्ट्स हैं या टॉपिक्स हैं, और आपका तीनों पढ़ोगे तो ऐसे राइटिंग, इथिक्स राइटिंग सारा इंप्रूव हो जाता है. और इसमें फिर सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडियन समाज, उसके क्या सैलिएंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है. डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ओके, इंडिया की विविधता, कौन कौन से एंगल पे इंडिया डाइवर्स है, फूड हैबिट, क्लोथिंग हैबिट, रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज एटसेट्रा. एंड देन रोल ऑफ वीमेन एंड वीमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, कि वीमेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इंडिया के पॉपुलेशन का 50%, लेकिन विमेन्स के क्या क्या इश्यू है. फॉर एग्जांपल इंडिया की 50% पॉपुलेशन विमेन है, यूपीएससी में भी आधी लड़कियां आती है, विमेन है, लेकिन आईपीएस में या पुलिस सर्विस में सिर्फ 14-15% फीमेल्स है, एमएलए एमपी 14-15% फीमेल्स है. 50% क्यों नहीं है जब इंडिया की पॉपुलेशन 50% है. तो यही विमेन के इश्यूज आपको पढ़ने. देन डेवलपमेंटल इश्यूज, कि इंडिया के डेवलपमेंट, ग्रोथ रिलेटेड क्या इश्यूज है. अर्बनाइजेशन जो इंडिया में बढ़ रहा है, ओके, और आगे के 10-15 साल में इंडिया का 50% से ज्यादा पॉपुलेशन सिटी में रहेगा, तो अर्बनाइजेशन कैसे हैंडल करो, उसके इश्यूज, देयर प्रॉब्लम एंड देयर रेमेडीज. एंड देन इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, जो ग्लोबलाइजेशन बहुत बढ़ चुका है, और ग्लोबलाइजेशन तो अभी गांव गांव तक पहुंच चुका है. ओके, विलेजेस भी ग्लोबलाइज हो चुके हैं, सिटीज तो हमारे पिछले 15-20 साल ऑलरेडी गॉट ग्लोबलाइज. सो इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी. एंड देन आपका सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये इंडिविजुअल टॉपिक्स है. कम्युनलिज्म जो हिंदू मुस्लिम सारे दंगे वगैरह होते हैं, उसके रीजंस क्या, उसका इंपैक्ट क्या. ओके, सोशल एम्पावरमेंट, की जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, जो वीकर सेक्शंस है, फीमेल्स हो, ऑप्रेस कास्ट कम्युनिटी, ट्राइबल्स हो, उनका एम्पावरमेंट कैसे करो, नॉर्थ ईस्ट के लोग, उनका एम्पावरमेंट. एंड एट द सेम टाइम रीजनलिज्म, ये जो चलता है कि रीजनल इश्यूज, एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट के लोगों को हेट करते हैं, ये रीजनल इश्यूज क्यों है एटसेट्रा. एंड सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, या उसके भी अलग अलग मॉडल्स है सेक्युलरिज्म के. रशियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, फ्रेंच मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, अमेरिकन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म. सो धर्मनिरपेक्षता, निगेटिव सेक्युलरिज्म, सर्वधर्म संभाव, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, दोनों में क्या रिलेशन है, ये भी टॉपिक, ये सब पढ़ने हैं हमें. एंड देन थर्ड टॉपिक इज ज्योग्राफी. तो सैलिएंट फीचर्स ऑफ एंड फीचर ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड. तो वर्ल्ड ज्योग्राफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो पढ़ना है. इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी भी आपको पढ़ना है, मॉनसून वगैरह वो सब. एंड जो नेचुरल रिसोर्सेस है, मिनरल रिसोर्सेस या आपके फॉरेस्ट्री वगैरह, वाटर सोर्सेस एटसेट्रा, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडिया में भी, अलग अलग स्टेट्स में, या पूरे दुनिया में कैसे कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, किस कंट्री के पास कितने हैं, ऑयल, डीजल, नेचुरल गैस, ये सारी चीजें. एंड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इंडस्ट्री. प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर एटसेट्रा, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री अलग अलग होती है. टर्शियरी मतलब सॉफ्टवेयर, बैंकिंग एटसेट्रा, वो कैसे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे अलग अलग सिटीज में अलग अलग इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी है, क्यों वहां पे वही इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी है, ये सारी चीजें आपको समझनी है.
and then important geophysical phenomena such as earthquake, tsunami, volcanic activity, cyclone, etc. and geographical features and their location and change in critical geographical feature. ये सारी चीजें जो हो रही है ओके उनमें करंट अफेयर में कुछ न्यूज आती है तो वो भी आपको पढ़नी है, या इनके लिए गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए हैं, वोल्केनो के या सुनामी आती है तो उसके अर्ली वार्निंग, सुनामी के लिए जो सिस्टम्स है एटसेट्रा, या साइक्लोन आते हैं तो उसके डिजास्टर साइक्लोन वार्निंग सिस्टम कैसे काम करती है वगैरह, ये सारी चीजें, एंड फ्लोरा एंड फाउना एटसेट्रा, इंडिया में कौन सा फ्लोरा फाउना है, कौन सी इंडेंजर स्पीसीज है एटसेट्रा। तो इसका बहुत सारा पार्ट आप इकोलॉजी एनवायरमेंट प्रीलियम में भी पढ़ते हो, ज्योग्राफी का बहुत सारा पार्ट प्रीलियम में भी पढ़ोगे आप ओके। थोड़े एडिशनल टॉपिक है वो अलग से यहां पे पढ़ने, हिस्ट्री का भी मोस्ट ऑफ द पार्ट प्रीलियम में पढ़ते हो, थोड़े एडिशनल टॉपिक है जो यहां पढ़ने हैं, एंड इंडियन सोसाइटी प्रीलियम में नहीं पढ़ते, वो अलग से यहां पे पढ़ना है। सो दिस इज आपका बेसिकली टोटल पार्ट ऑफ द जीएस पेपर 1 ओके। अब ये जो जीएस पेपर 2 है पॉलिटी का, जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स का, इसके पीडीएफ में आपको भेजूंगा, सिलेबस सिर्फ ओवरव्यू कर लो, उसकी जो फैकल्टीज है जब आएंगी दे विल डिस्कस विथ यू बिफोर लेक्चर से पहले डेमो लेक्चर में वो सारा उसका माइक्रो एनालिसिस सिलेबस का आपके लिए कर देंगे ओके। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइज, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड टुमारो वी विल डिस्कस द इथिक्स पेपर का माइक्रो एनालिसिस ओके। 2 घंटे हर एक टॉपिक क्या है, आपसे क्या एक्सपेक्ट है, उसका बेसिक मीनिंग क्या है, दैट वी विल फोकस ऑन। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गुड लक।